हैं हम लोग। डन। तो इट इज फर्स्ट क्लास फॉर कैट VARC. VARC stands for verbal ability and reading comprehension. Okay, now let me give a brief introduction. I am Lavi Singh and I am a English faculty. I had been in this institute back in 2022 and after that I shifted to some other place, and again I'm back here out of my hectic schedule. Then talking about me, I am an ex-employee of Election Commission of India. I had cleared my SSC, but I was not into this clerical job kind of thing. So I left my job and returned to Bareilly. And presently I'm doing all this. Like people obviously mock at me कि आप सरकारी नौकरी छोड़ के यहाँ बैठी हो. But ठीक है, it's choices, no? हर life, हर rules, हर choices. So वही मेरे पे भी apply हुआ था. I left my job and then I'm here. Then talking about my experience with teaching students. So I have been teaching students since I was 19. Like I was giving home tuitions initially. Then when it came to institutional teaching, I started it back in 2021. So since 2021, I have been connected to any other or some kind of coachings. Currently, I'm a faculty at Uttar Pradesh government, a scheme known as Abhyuday Yojana. So we are connected to Lucknow for that reason, and I am a UPSC mentor of geography, UP, GK and English. So काफ़ी कुछ ना काफ़ी जैसे बोलते हैं ना scattered kind of thing है मेरे संग. But overall speaking, very brief about me, it's like कि I am a faculty. This much is sufficient to introduce myself. Now coming कि मैं जब अपनी class start करती हूँ, I always kind of make it interactive. और उस interaction को बरकरार रखने के लिए first thing I do is मैं सबके नाम याद करना prefer करती हूँ, because I cannot say yes yet red t-shirt, yes black coat or this kind of thing. I always try to make a rapport with my students. So पहले हम start करते हैं by having a brief introduction of you people. ठीक है, in the brief introduction आप बताएंगे what is your name, what are you pursuing or what have you pursued. For example, you've done BBA, BCom, MBA, जो भी कर रखा है आपने, and what are obviously सबका यहाँ पे aim IIMs जाना ही है. But other than getting into IIM, what are your एम्स और पैशंस. मैं वो नहीं जानना चाह रही कि मैम मेरे को एक सक्सेसफुल एम्बियन काइंड ऑफ थिंग कुछ कर बनना है. मुझे जानना है अपार्ट फ्रॉम दिस एकेडमिक्स और अपार्ट फ्रॉम कि आपको IIM में जाना है, उसके अलावा व्हाट आर योर पैशंस और व्हाट आर योर ड्रीम्स टू अचीव. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. हाँ जी. Hi ma'am, I'm Vanshika Rastogi. Okay. I did my BCom from UP at Kerala. Okay. And did an internship in Deloitte for last 10 months. Okay. And I love to dance. I want to be a dancer too, but also want to pursue MBA from IIM and want to settle in London. Okay. Nice. That's a visionary idea, and we would be definitely aligning on our passions. Yes. Good morning, ma'am. My Okay. name is Aditya Gaur. Aditya. I'm currently pursuing my BCom on second year from Regional College. Okay. Apart from doing MBA and getting into an IIM college, I want to lead a very lavish life that I've always imagined in my head. And I want to settle abroad. Like I don't want to settle in, India. India. I just want to leave India as soon as possible. Okay. Okay, Aditya. Yes. My name is Arish. Arish. Pursuing BBA from Vertex. Okay. And What are your dreams like apart from getting into an IIM? I'm to become a businessman. To become a businessman. Is your family into business? Okay, great, Arish. Yes. Up. My name is Donald Pratap Singh. Currently, I am doing BSc from Bareilly College. I am a hardworking person. And what do you think? आप क्या करना चाहते हैं आगे लाइफ में? I want to be a good businessman. बिजनेस में सेकेंड फैमिली बिजनेस में है या आपको? ओके, गुड. यस. My name is Karan Bhagga. Okay. And I have completed my BCom. And I have experience of 2 years in immigration company. Okay. And now I have to start my own business after MBA. After MBA business. Yes. My name is Shekhar Sharma. I have completed my BSc last year. And I want to be a businessman. You want to be a businessman. Everyone wants to be a businessman, but apart from a businessman, ठीक है ना? Apart from earning money, what actually you guys want to do, वो जानना है. Like पैसा सबने कमाना है.
अच्छी ज़िंदगी सबको जीनी है, कौन व्यक्ति होगा जो कहेगा कि मुझे अंबानी की ज़िंदगी नहीं जीनी है, ठीक है, अल्टीमेटली सबको वही करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक पैसे वाला मैटर को छोड़ दो तो क्या करना है, अगर पैसा बहुत आ जाए उसके बाद क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या करूंगा, क्या करूंगी, वो जाने। लाइक शी टोल्ड मी, वंशिका, राइट, वंशिका टोल्ड दैट शी वांट्स टू बी अ डांसर। सो अगर वो उनके पास उनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं तो शी वुड बी गोइंग विद डांसिंग। दिस काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट कि आप लोगों के अंदर से। यस, एक सेकेंड, आदित्य। Ma'am, apart from leading a very lavish life, actually I'm an national player, football player. फुटबॉल प्लेयर। Apart from that, I want to pursue my dream. Actually, my first dream was to become a national, international football player. Player. Yes, I wanted Okay. to represent my country in front of all the countries. That's So great. that's my. That's really good. That's really good. Yes, Arish, what about you? Apart from being a businessman, I'm a politician. you want to be a politician. Great, nice idea. Yes, एक second. Amar Pratap. Naman Pratap. Okay. I would like to explore new places. New places. You want to be a wanderlust kind of a person. Okay. तो इंडिया में ही एक्सप्लोरेशन करने का ज़्यादा इंटरेस्ट है या फॉरेन? फर्स्ट इंडिया। ग्रेट। यस, करण। यस, करण। As my brother has shifted in Australia, so I also have planned to go there. You want to be in Australia. मतलब you want to explore Australia in short if we say. Then Shekhar. Shekhar. Ma'am, later on I want to settle my family. Settle with your family at some place. कहाँ पे? मतलब कहीं सेटल होना चाहते हो या इट्स लाइक कि योर ड्रीम इज कि लाइक सेटल ही होना है? सेटल तो सब नहीं होना है यार, मतलब परिवार के साथ। अच्छा, मतलब यू आर सेइंग कि आप कहीं और जॉब करोगे, फैमिली यहाँ होगी, तो इन द मीन टाइम आप चाहते हो कि इतना यू शुड कलेक्ट सो दैट यू कैन कम बैक एंड सेटल विद सम। दैट्स ऑल्सो वेरी ग्रेट यार, वेरी डीप रूटेड आइडियाज। यस, आप प्लीज इंट्रोडक्शन। हाँ जी, कोई नहीं, हम पीछे से पहले ले लेते हैं। हाँ जी, आप। गुड मॉर्निंग। रिद्धिमा। ओके ओके। My dream is to have a peaceful life. That's it. Is a lot of hustle going in your life currently? Like सबकी में होता है obviously. So you want to leave that hustle life and you just want to settle at some peaceful place. Then kind of peace in your life. Very good, very good. Yes. My name is Kanishka Anand. I'm Kanishka. pursuing graduation from Bareilly. Bareilly College. And my ultimate dream in life is to be independent, financially. Financially independent. Great, nice idea. Yes. My name is Shranshi Singh. I'm Sorry, your name, beta? Shranshi Singh. Shreyanshi. Okay, Shreyanshi. I'm currently pursuing my BBA from Regional College. Okay. My goal is to crack CAT and settle in a good city. Apart from cracking CAT, To live a peaceful life. to live a peaceful life again. Okay. Yes, your introduction please. आप। हाँ, जो अभी आए हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, मुझे नाम नहीं पता तो मैं अभी नहीं बोल सकती। हाँ, वो हो गए उधर के पूछे। हाँ जी। Sohard Gangwar. सौहार्द। ओके, सौहार्द गंगवार। I'm currently pursuing graduation from Edinburgh University ओके in BBA, ओके and my aim is to crack CAT in first attempt, and then Apart from cracking CAT, what are your aims or passions? my aim is to start my own business. Apart from business also. लाइक यहाँ सबका यही था, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और समथिंग, बट उसके अलावा अगर वो भी आपने कर लिया, कैट भी हो गया, बिजनेसमैन भी बन गए, अब क्या करना है उसके बाद? कुछ तो होंगे। लाइक उनका था ही वांट्स टू बी अ फुटबॉल प्लेयर, उनका था ही वांट्स टू बी अ पॉलिटिशियन, शी वांट्स टू बी अ डांसर, दे वांट टू लिव अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ. व्हाट आर योर एम्स टुवर्ड्स लाइफ? Continuing my family legacy Family legacy as of a politician. as your family is into politics. Two politicians sitting together and a third person here who's interested in politics. Yes, आप अब तो आप बता देंगे ना, हेजिटेशन तो नहीं हो रही अब? हाँ, अब बताइए. हेजिटेशन ही है. Are you a shy person?
सोशली ऑकवर्ड हो जाते हो क्या एकदम, कोई कुछ पूछ लेता है तो? फिर क्या हुआ फिर एकदम से? ये ड्रीम्स ही ऐसे हैं कि मैम बता ही नहीं पा रहे हैं हम कि हमें दुनिया जीतना है, दुनिया को पे राज करना है, क्या मतलब? रिवील नहीं करना चाह रहे, फेस रिवील होगा बाद में। हाँ जी बताइए, अरे नाम तो बता दो भाई, क्या नाम है? देवांश। ओके देवांश, क्या करना चाहते हैं जीवन में बिजनेसमैन बनने के अलावा? नहीं गूगल सर्च नहीं करना है, चैट जीपीटी नहीं, ऐसे ही बता दो। नहीं नहीं मतलब ऐसे ही नॉर्मली कि क्या एम्स हैं, क्या पैशंस हैं, क्या करना पसंद है? यू आर इन द राइट फील्ड देन। My name is Devan Singh. I'm 22 years old. I have done my schooling from CBSE board. Currently, I am pursuing BSc in Biotechnology from Bareilly College. ओके My aim is cracking CAT this year and separate from another city. शिफ्टिंग टू अनदर सिटी। और पैशंस क्या हैं आपके? अपने फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है आपको? जैसे गेम्स खेलना, क्रिकेट खेलना या कुछ भी इस तरीके का? जब छोटे थे तो यही सपना देखा था कैट क्रैक करूंगा, क्या सोचा था? हाँ नहीं वही तो ना, जब छोटे थे तो एक मन में होता ना बड़े होके मैं ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, पापा जैसा बनूंगा ऐसे करके, तो क्या सोचा था कि बड़े होके क्या करना है मुझे? कोई बात नहीं, चलिए। सो थोड़ा बहुत आई हैव नोन योर नेम्स। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सबके नाम जान गई हूँ, कुछ नाम जान गई हूँ। लेट्स ट्राई वंस। श्रेयांशी, कनिष्का, भट्ट साहब, क्या नाम था आपका? रिदिमा, देन शेखर, देन देवांश, देन करण, देन नमन प्रताप, देन आरिश, देन सौहार्द, आदित्य, वंशिका। कूडोस टू मी, मुझे सारे नाम याद हो गए पहली बार में, हालांकि मुझे इतनी जल्दी होते नहीं है नाम याद। ओके नाउ कमिंग टू, अब हम पढ़ते हैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कैट VARC स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज कैट? ये जितनी बार टीचर्स आए होंगे आपको हर बार टीचर्स ने यही सब भाषण दिया होगा कि कैट होता क्या है। इट इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन इनटू IIMs इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ व्हाटएवर। टेस्ट क्या कर रहा है आपका? मेन चीज ये है, सबसे पहली चीज है कि ये टेस्ट करता है बच्चों आपकी वर्बल एबिलिटी। ठीक है, अब ना व्हाट इज वर्बल एबिलिटी? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल थिंकिंग। कोई बता सकता है मेरे को? वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल थिंकिंग, ये होती क्या चीजें हैं? हाँ जी ट्राई प्लीज। By verbal ability, it means that they are testing that how well you are speaking in front of everyone, how well you are conducting your speeches. For reading comprehension, it's like how well you are comprehending the given passages or the long information that is being assigned to you. And by logical thinking, I'm a little confused about the logical thinking. It's like they'll give you some problems and then you have to think logically according to the problems. Okay. To a larger extent, you've touched all the arenas here. काफी कुछ उन्होंने बहुत रिलेटेबल बताया, लेकिन अब हम थोड़ा सा ना स्लाइड्स को आगे बढ़ा के और हम देखते हैं, और उसके बाद अंत तक आते आते मुझे लगता है आप सब लोगों को इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा कि एक्चुअली LR इसका इसमें मतलब सॉरी लॉजिकल थिंकिंग का इसमें मतलब क्या है, RC का इसमें मतलब क्या है और VA का इसमें मतलब क्या है। अब भी मुझे ये बताइए कि थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में या नहीं? थोड़ा बहुत पढ़ा था? जो सब चीजें देख रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, थोड़ा बहुत पढ़ा था? चलिए थोड़ा आगे आते हैं अब जरा। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो 3 से 4 तो आपको क्या देखने को मिलेंगे इसमें? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे। 16 RC क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली, 8 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, तो तकरीबन कितने क्वेश्चंस हो गए आपके पास? 24 क्वेश्चंस हो गए। लेकिन समय कितना मिलेगा आपको करने के लिए? 40 मिनट्स। अब लोग ये कहते हैं कि इस पेपर में, चाहे वो इसका पेपर हो, चाहे वो SSC का हो, बैंक का हो, कोई भी एग्जाम हो, आप देखिए एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका ये वाला जो कैट का एग्जाम होता है ये सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है? क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, UPSC के एग्जाम के बारे में कभी किसी ने सुना है? क्या वो सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है? जो मेंस आंसर राइटिंग होती है सब्जेक्टिव, मतलब प्रीलिम्स तो मैंने मेंस का पूछा तो वो सब्जेक्टिव होता है। आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि कैसे डिसाइड होता होगा कि किसी एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट लेना है और किसी एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है? क्या किस तरीके से एप्टीट्यूड टेस्टिंग के ये टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं कि कैट ऑब्जेक्टिव हो जाता है और UPSC सब्जेक्टिव हो जाता है? बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब आपको कैट का एग्जाम देने बिठाया गया है तो आपकी यहां पर ज्ञान की टेस्टिंग नहीं चल रही है,
कौन कितना बड़ा ज्ञानी है, कौन बोध गया में बैठ के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त कर कर आया, ये नहीं, इसका ज्ञान नहीं देखा जा रहा है। यहां ये देखा जा रहा है गिवन टाइम पीरियड में कौन कितना बेहतर अपने दिमाग को कंसंट्रेटेड करके चीजें सोच सकता है, बस इतना सा देखा जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो आपके कैट का एग्जाम हो जाए, एसएससी का एग्जाम हो जाए, बैंक का एग्जाम हो जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आता है वो होता है टाइम, क्वेश्चंस नहीं होते। लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग चीज हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी टाइम। व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, वहां ये देखा जाएगा कि आप कितना बेटर अपने केस को सॉल्व कर पा रहे हो, आप कितने अच्छे तर्क दे पा रहे हो। यहां ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है, यहां देखा जाता है उस टाइम फ्रेम के अंदर आप कितने क्वेश्चंस कर ले जा रहे हो, या कर भी पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अल्टीमेटली देखो बेटा, यहां पे ना प्रैक्टिस, हम क्यों बोलते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नीडेड होती है, क्योंकि क्वेश्चंस लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि वो 2 घंटा, वो 3 घंटा जब आप एग्जाम दे रहे हो, उस टाइम आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो प्रश्न चलना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। क्योंकि इसके बाद आपने जिस फील्ड में जाना है, बहुत से लोग बैंकर बनते हैं इस फील्ड में जाने के बाद, बहुत से लोग कंपनी में बड़ी बड़ी पोस्ट संभालते हैं। इसमें काम केस स्टडीज को सॉल्व करने का नहीं होता है, इसमें काम होता है वर्कलोड को मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, बड़े बड़े लॉन्ग वर्किंग आवर्स में मैनेजमेंट करना। इसीलिए आपसे हमेशा टाइम का स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से यह है कि कृपया अपने क्वेश्चंस को करने से पहले टाइम को मैनेज करना सीखिए। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड, आप मुझे एक क्वेश्चन दीजिए अभी बैठ के, मैं भी सॉल्व कर सकती हूँ, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। आई हैव अ वेरी टाइट हैंड एट मैथ्स, मेरी मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं, बट स्टिल आई कैन सॉल्व अ क्वेश्चन, इवन यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन। आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो बहुत इंटेलिजेंट है मैथ्स में, वो सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन करके मुझे बोल देता है कितना हुआ, और मुझे वो चीज़ करने के लिए कैलकुलेटर या फिर मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो भी सॉल्व कर ले रहा है, मैं भी सॉल्व कर ले रही हूँ, लेकिन हम दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है मैथ्स में? वो क्यों? क्योंकि वो गिवन टाइम फ्रेम या गिवन टाइम फ्रेम से भी कम टाइम में सॉल्व कर ले रहा है। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सुबह 10 बजे से लेके बैठो, रात के 9 बजे तक सॉल्व कर रहे हो, ऐसी डिमांड नहीं है कैट की। क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को करेक्ट टाइम में कर ले जाना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे कहां ध्यान देना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चंस हो जाएं बस हमसे, कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं कैसे भी करके। इसे क्या हो गया? ये जूम नहीं होता है आपका क्या? सेम WPS है फिर भी ये अलग क्यों काम करता है? मैं वो कट कर दीजिए। हम ये व्यू पे क्लिक करिए। वो एनोटेशंस नहीं होंगे इसमें अगर व्यू पे कर दिया तो। चलिए मैं बिना स्टाइलिश के सिर्फ इसी से अभी करा देती हूँ। सेम एप्लीकेशन बट अलग अलग तरीके से रन हो रही है यार, वहाँ पे भी सेम है बट हाथ से ही होता है और इसमें अब आ नहीं रहा है। ओके चलिए, तो हमने अभी सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमें सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। पहला काम मैनेजमेंट में करने का यही है, टाइम मैनेजमेंट। ओके, coming about the fun fact is that 65 to 70% of the VARC marks comes from the RC alone. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही सबसे ज्यादा आपका परसेंटेज ऑफ नंबर मिलेंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटा ऐसी चीज है जहां मैं जब बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाती हूं तो बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम ये वाला वर्ड समझ नहीं आ रहा है, ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही है, मैम ये 3 लाइनों को मिलाया जाए तो क्या इसका अर्थ निकल रहा है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि उन बच्चों को उस पूरे पैराग्राफ को समझने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों पड़ती है आपको पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने की, एक एक वर्ड की मीनिंग जानने की जब आप एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी आरसी को सॉल्व करने की इतनी होती है कि मेरे पास एक पूरी कथा लिखी हुई है,
और उस पूरी कथा में से खाली मुझे वो वाले वर्ड्स निकालने हैं जो मेरे काम के हैं, बाकी सब जाए भाड़ में। मुझे क्या करना पूरी कहानी को जान के? मैं कोई मूवी देखने जा रही हूँ कि मुझे डॉट्स कनेक्ट करनी पड़ेंगी सारी की सारी? बच्चे एक एक लाइन को डिकोड करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे एक लाइन थोड़ी डिफिकल्ट आ जाए, मैम इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। अगर वो लाइन क्वेश्चन में आ रही है तब तो उसका मीनिंग डिकोड करने का ट्राई करो, लेकिन अगर उस लाइन का रेलेवेंस किसी भी क्वेश्चन में नहीं है तो क्यों माथापच्ची कर रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, उस एक लाइन के पीछे पड़ जाते हो कि इसका मीनिंग पता चले, इस शब्द का अर्थ पता चले। दिस इज वेयर आरसी में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एंड दिस इज वाई आरसी सबसे ज्यादा घेरती है आप लोगों को। आरसी का पर्पस ही यही है ना, दी ही इसलिए जाती है टाइम बर्बाद करने के लिए। स्टूडेंट्स टाइम को व्यर्थ करें इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस दी जाती हैं। एसएससी का एग्जाम उठा के देख लो आरसी मिलेंगी, बैंक का एग्जाम उठा के देख लो आरसी मिलेगी, कैट का एग्जाम देख लो आरसी मिलेगी, यूपीएससी का सीसैट देख लो आरसी मिलेगी, पीसीएस का सीसैट देख लो आरसी मिलेगी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे आरसी नहीं होती। किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसा कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है जहां आरसी नहीं मिलती, और उसका एकमात्र मोटिव होता है टाइम वेस्ट करना स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स वुड बी स्टक इन दोस पैसेज, इन दोस क्वेश्चंस, और यही उसका एकमात्र वो है एम, टाइम वेस्ट करो बच्चों का। इसीलिए जब मैं आरसी करवाती हूं तो मैं टाइम लगा के करवाती हूँ, 7 मिनट में करो, 4 मिनट में करो, 11 मिनट में करो, ऐसे करके। जब आप टाइम बाउंड तरीके से करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा, आपके अंदर अपने आप प्रैक्टिस पड़ जाएगी कि मुझे खाली वो काम करना है जो मेरे लिए नीडेड है, जो नॉट नीडेड, अननेसेसरी है, फ्यूटाइल है, उसको छोड़ ही देना है आपको। ठीक है, अच्छा पैसेजेस कहां से आते हैं? पैसेजेस के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने दिए हैं, जैसे कि फिलॉसफी से कुछ आपको देखने को मिलेंगे, साइकोलॉजी से देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे, सोशियोलॉजी से देखने को मिलेंगे, साइंस से देखने को मिलेंगे, और कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं। व्हाट इज दिस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स? एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स नॉर्मली हो गया करप्शन पे दे दिया, या हार्ड वर्क पे दे दिया, या रेजिलियंस पे दे दिया, परजीवरेंस पे दे दिया। ऐसे जो बड़े भारी भारी शब्द होते हैं ना आपके जीवन में, उन्हें आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की कैटेगरी में रखते हो। तो कैट के अंदर जो आते हैं वो अधिकतर यहीं से ही आते हैं। वो नहीं आएंगे कि एक राजा था, उसका एक बच्चा था, उसका बच्चा जो है वो गुरुकुल में गया, वहां पे जाके उन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन फिर वो आया पर वो नाकारा था। ऐसी वाली कहानियां नहीं आती हैं जो बचपन में नहीं आती थी अपने पास अनसीन पैसेजेस में, अपठित गद्यांश हिंदी में कहते थे हम लोग उन्हें। उस प्रकार का यहाँ पे नहीं आता। यहाँ बहुत ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल, जिसमें हाई आईक्यू, हाई ईक्यू दोनों की नीड पड़ेगी, इस प्रकार के आपको यहाँ पे पैसेजेस देखने को मिलेंगे। देख लो, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सारे टॉपिक्स वही वाली चीजों को टच कर रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट, कैट पैसेजेस आर नॉट एट ऑल फैक्चुअल, दे आर आर्ग्यूमेंटेटिव। आपके कैट के पैसेजेस में और जो स्कूल टाइम में एकेडमिक्स में पैसेजेस कर रहे थे, उनमें बस इतना फर्क हो जाता है कि वो वाले जो पैसेजेस होते थे वो काफी हद तक फैक्चुअल होते थे। जैसे अभी मैंने बताया ना, राजा का एक बेटा था, वो गया, उसने वहां पे वो नाकारा निकला, फिर उसकी जो है एक लड़ाई हुई, तो बहुत ऐसे स्टोरी लाइक आपको लगेगा, तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। बट कैट के जो होंगे आपके पैसेजेस, दे आर गोइंग टू बी आर्ग्यूमेंटेटिव, तर्क वाले होंगे कि कोई एक लाइन लिखी है, उस पे इनका कुछ और मानना होगा, सेम लाइन पे इनका कुछ और मानना होगा, ये उस लाइन से कुछ और डिकोड कर रहे होंगी और ये उस लाइन से कुछ और डिकोड कर रहे होंगे। यानी कि जितने यहाँ पे बैठे हैं जरूरी नहीं है उस एक लाइन, उस एक सेंटेंस का अर्थ सबके लिए बराबर ही जाए। सब अपने सोचने समझने की क्षमता के अकॉर्डिंग ही उस चीज को लेके जाएंगे। बात समझ? जैसे टॉपिक ले लो मिसोजिनी, ठीक है, पेट्रियार्की, मिसएंड्रिज्म, इस तरीके के टॉपिक्स उठा लो, सबके आपके ओपिनियंस अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है जितने क्लास में बैठे हुए सब पेट्रियार्कियल माइंडसेट के होंगे, सब मिसोजिनिस्ट माइंडसेट के होंगे। और मिसोजिनी और पेट्रियार्की में भी लेवल्स होंगे कि कोई कहता होगा कि पेट्रियार्की इतनी होनी चाहिए, कोई कहता है 0 होनी चाहिए, कोई कहता है कि पेट्रियार्की ही होनी चाहिए। लेवल्स आ गए ना, यानी कि एक वर्ड के अलग अलग इंप्रेशन सबके मन में बने हुए हैं। उस प्रकार के आर्ग्यूमेंटेटिव एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आपको अपने कैट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ आरसी के जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्या होते हैं? पहला तो रहेगा व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज कहना क्या चाह रहा है। दूसरा रहेगा आपका ऑथर का टोन। अब टोन्स क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्लास में, लेकिन ऑथर का टोन पूछना चाहता है कि ऑथर सरकास्टिक था, स्केप्टिकल था, या क्रिटिकल था, आर्ग्यूमेंटेटिव था, ये सब चीजें। सॉरी। फिर आएगा आपका इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब आपने इस पूरे पैसेज से क्या समझा, क्या कंक्लूजन निकाला। वो स्ट्रेंथन या वीकन, व्हाट वाज द स्ट्रेंथनिंग पॉइंट, व्हाट वाज द वीकनिंग पॉइंट।
और एक आएगा आपका एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब पैसेज को देख के ही एक उसके आधार पर, जैसे थेरेटिकल दे दिया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका पूछ लिया, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। वही बात हो गई ना कि पेट्रियार्की पे एक पैसेज आ गया, लेकिन आइडियाज, नोशंस सबने अलग अलग तरीके से परसीव करा होगा, तो इसलिए सबके आइडियाज भी डिफरेंट डिफरेंट निकल कर आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा वीए वर्बल एबिलिटी में क्या, अच्छा ये बताओ अब आपको आरसी में क्लियर हो गया, आरसी में क्या क्या आते हैं, किस प्रकार के टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आ जाओ जरा वर्बल एबिलिटी में। वर्बल एबिलिटी में जो सबसे पहला है वो है पैराजंबल्स। पैराजंबल्स क्या होंगे, PQRS ABCD ऐसे कर करके आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे जो कि जंबल्ड फॉर्म्स में होंगे, एक करेक्ट सीक्वेंस नहीं होगा, और आपसे कहा जाएगा इन्हें ग्रामेटिकली या लॉजिकली करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए। तो आपको देखना पड़ेगा कि ABBC क्या करना पड़ेगा आपको, CABD कैसे आपको लगाना पड़ेगा, तो वो पैराजंबल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका पैरासमरी, जस्ट लाइक दैट बट थोड़ी डिफरेंट है। ऑड सेंटेंस आउट, सेंटेंस दिया हुआ है, एक उनमें से ऑड वन आउट होगा, वो आपको निकालना होगा। ये सब अभी सिर्फ मैंने लिखे हैं, लेकिन जब हम इनको देखेंगे एक एक प्रश्न को, तब आप उन चीजों को ज्यादा बेहतर समझोगे। अच्छा, ओके, विच इज इजियर, ग्रामर और लॉजिकल रीजनिंग? हाँ देखिए, आपको क्या लगता है विच इज इजियर, ग्रामर या लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीडिंग ज्यादा आसान है या ग्रामर ज्यादा आसान है, क्या लगता है? देखो लॉजिकल रीडिंग क्या होती है, एक लाइन पढ़ी, इस लाइन को पढ़ के आपने उसकी कुछ मीनिंग निकाली, लॉजिकल मीनिंग निकाली, खाली ऐसे नहीं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रूलर, ये बस पढ़ लिया मैम रीडिंग हो गई हमारी। नो, लॉजिकल रीडिंग मतलब वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रूलर हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ कलिंग एंड ही वॉज, जो भी पूरी कहानी है, वहां से आपने ये चीजें निकाली कि अच्छा जो राजा था वो थोड़ा सा ब्रूटल था, थोड़ा सा टायरेंट था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, तो आपने राजा की एक इमेज क्रिएट कर ली अपने दिमाग में। बट फिर आप देख रहे हैं कि 362 जो भी वट एवर बी द ईयर, इसमें एक वॉर हुआ, जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसने देखा इतने सारे लोगों को मैंने मार दिया, तो इसलिए उसने आपसे वॉर छोड़ दिए। आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रही है और आप अब चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो कि दिस इज हाउ हार्ट ट्रांसफॉर्म्स। तो आपने ये जो किया इसको लॉजिकल रीडिंग कहा जाता है, दिमाग लगा के चीजों को आपने कनेक्ट किया। और नॉर्मल रीडिंग क्या हो गई कि बस कहानी की तरह आपने सुन लिया, मूवी की तरह आपने देख लिया कि एक चले थे मूवी गए थे हम देखने, बट मूवी के पीछे के जो रियल जो उसके पीछे कहानी जो दिखाई गई है, उसके पीछे जो क्या बोलते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो उसमें कनेक्टेड थे, वो आप अगर नहीं छू कर आए, वहां नहीं देख कर आए, तो फिर उसको कहेंगे आप मूवी देखने गए ना। दो प्रकार के लोग होते हैं ना, थिएटर होता है एक और एक होती है बॉलीवुड, फर्क होता है दोनों में, पता है ना आप लोगों को। थिएटर अलग चीज होती है, बॉलीवुड अलग चीज होती है। बॉलीवुड में वरुण धवन जैसे भी लोग होते हैं जिनके पास एक्टिंग का पता नहीं क्या ए भी नहीं होता है, और थिएटर में एक्सप्रेशन चेहरे पे दिखते हैं, पता चलता है। अभी आप उनसे बोलो गुस्सा करना है, चेहरे पे एकदम आएगा, दुख में रोना है एकदम चेहरा चेंज होगा, हंसना है अलग होगा। डांसर्स को देखा होगा, भरतनाट्यम डांसर्स को, उनके चेहरे पे बार बार एक्सप्रेशंस बदलते रहते हैं। दिस इज हाउ उसे आप लॉजिकल रीडिंग वाले कॉन्सेप्ट में कर सकते हो। पर वो जो बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म से नए नए लोग आ गए हैं, वो जो एक्टिंग करके जा रहे हैं, वो जबरदस्ती की होती है ना, कि वो दिख भी नहीं रहा है कि रो रहे हैं, दिख भी नहीं रहा है हंस रहे हैं। वरुण धवन ऑल थ्रू द मूवी सेम एक्सप्रेशन लेके घूम रहा है, तो वो कहा जाता है कि इट्स लाइक कि आपने सिर्फ रीडिंग कर आ गए हो, खाली पढ़कर आ गए, बट वो थिएटर वाली लॉजिकल रीडिंग हो गई। ग्रामर, अच्छा आप बताओ मुझे अब कि ग्रामर आपको ज्यादा आसान लगती है, लॉजिकल रीडिंग आपको ज्यादा आसान लगती है? अगर कोई आप में से कोई ICSE बोर्ड का है, आप दोनों 3 लोग, आप भी हो श्रेयांशी? अगर आप ICSE बोर्ड के, तो आपको लॉजिकल रीडिंग बहुत अच्छे से आती होगी, क्योंकि लॉजिकल रीडिंग अच्छा खासा एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा होता था, उसमें वो लोग उसका इन डेप्थ मीनिंग निकलवा लिया करते थे। डैफोडिल्स की स्टोरी है, इफ पोयम है, डैफोडिल्स की पोयम थी, इफ वाली एक पोयम थी ना, इस प्रकार की नॉर्मल पोयम में कौन सी नॉवल कौन सी लगी हुई थी आप लोग के यहाँ? मर्चेंट ऑफ वेनिस। एट माई टाइम इट वॉज एज यू लाइक इट, तो विलियम शेक्सपियर की। तो नॉर्मल वर्ड में भी वो एक अलग इन डेप्थ मीनिंग निकलवा के ला रहे हैं, बहुत ज्यादा गहराई में जाके। दैट वॉज लॉजिकल रीडिंग। सो CBSE वालों को लॉजिकल रीडिंग डिफिकल्ट लगेगी, पर ICSE वाले आर यूज्ड टू द लॉजिकल रीडिंग। उन्हें पता है कि ये नॉर्मल वर्ड लिखा है, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी होगी लिखी हुई, है ना। जैसे कि वो डैफोडिल्स वाला था ना, तो उसमें एक वो था लाइन की डैफोडिल्स जो हैं वो मुरझा रहे हैं। नॉर्मल सी बात है ना कि
मौसम चेंज हुआ तो डैफोडिल्स मुरझा गए, लेकिन हमारी टीचर उसे कैसे पढ़ाती थी, ये जिंदगी है आपकी, ये जिंदगी भी एक समय बाद मुरझा रही है, अब आपके भी पीछे सब कुछ डस्क हो चुका है, पूरा अंधेरा छा चुका है। समझ रहे हो ना, ऐसा लगता था क्लास में बैठ के जैसे कि किसी बहुत बड़े उसमें हम फिलॉसफी के गुरु के सामने बैठे हुए हैं। तो इंग्लिश की क्लास फिलॉसफी क्लास हो जाया करती थी हम लोग की ICSE में। So this is what की लॉजिकल रीडिंग is and the grammar is you all know. I personally feel मुझे लॉजिकल रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है compared to grammar, because grammar के रूल्स याद करना it's not a cup of tea for everyone. इतने समय से मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन मुझे खुद को सारे इंग्लिश के रूल्स अभी भी I fumble somewhere, और बाद में बोलने के बाद रियलाइज होता है कि मैंने स्टेटमेंट की फ्रेमिंग गलत करी थी, मैं सेंटेंस गलत फ्रेम कर गई थी, और एट टाइम्स मैं सॉरी बोल के करेक्ट भी कर लेती हूँ, मतलब मैं सामने वाले को बता भी देती हूँ कि मैंने गलत बोला था। ठीक है, तो ग्रामर इज नॉट माई काइंड ऑफ थिंग, बट हाँ लॉजिकल रीडिंग इज अ गुड थिंग। अच्छा, आपका कैट क्या नहीं पूछता है? फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछता, जो SSC में पूछे जाते हैं, बैंक में पूछे जाते हैं। एरर स्पॉटिंग नहीं पूछता, अगेन SSC बैंक में पूछा जाता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को डायरेक्टली नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली भी बहुत डबल ट्रिपल इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछेगा। डायरेक्टली तो ऐसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रॉन्डेवू, नो, ऐसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही अलग तरीके से पूछेगा। चेक क्या कर रहा है? लैंग्वेज के अंदर लॉजिक आप कैसे ढूंढ रहे हो वो। ओके, हाँ, क्वेश्चन, इफ यू हैव 24 क्वेश्चंस विल यू अटेम्प्ट ऑल? अगर आपके कैट में 24 प्रश्न आते हैं, आप सबको अटेम्प्ट करोगे? बोल रहे हो आप यहाँ बैठ के मेरे सामने, वहां आप इसी इंटेंशन से जाते हो कि मैं करूंगा सारे ही, सब आप यही बोलते हो कि नहीं नहीं मैम ऐसे कैसे, हम सारे क्यों करेंगे, जो आते होंगे खाली वही तो करेंगे। पर एड़ी चोटी का जोर लगा दो कि 24 के 24 प्रश्नों को सही करने का लगा दोगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ डूइंग एवरीथिंग राइट। जब आप अपने घर से इस इंटेंशन से जा रहे हो कि अगर इंग्लिश में 24 प्रश्न आएंगे तो मैं 24 के 24 करने का ट्राई करूंगा, करूंगी, ये ट्राई वर्ड आपने मैनिफेस्ट कर लिया, अब आपके दिमाग में बैठ गया, ट्राई करना है, 24 के 24 सही करके आने हैं मेरे को। अब आप क्या करेंगे, आप पूरा दिमाग लगा देंगे अपना उस प्रश्न को करने के लिए। बहुत से प्रश्न तो बेटा छोड़ने के लिए ही आते हैं ना, एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ़ नहीं बैठा है कि पूरे 24 के 24 हलवा क्वेश्चन दे देगा कि जो लाओ बेटा जाओ करो, है ना, वो नहीं देगा ना। वो क्या करेगा, वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि तुम्हारे से वो क्वेश्चन ना हो, और तुम इधर लगा रहे होगे पूरा जोर कि मुझसे वो क्वेश्चन हो जाए। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में नुकसान सिर्फ तुम नहीं करना है, क्यों, टाइम खराब करोगे अपना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लगेगा देख के ही कि नहीं आ रहे, आप पता क्या करोगे, पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद दोबारा उन क्वेश्चंस पर आओगे कि एक बार और देख लेता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं, एक बार और देख लेता हूँ, देख लेती हूँ कि क्या पता मुझसे हो जाए। और काफी बार ऐसा होता है जिसे हम गिलोटिन बोलते हैं, लास्ट टाइम पर जब आपके पास कुछ ही सेकेंड्स, कुछ ही मिनट्स शेष होते हैं और आपके अंदर एक होड़ होती है कि यार एक दो और कर लूँ, एक दो और कर लूँ इस सेक्शन से, तो शायद मेरी कट ऑफ पार हो जाएगी, मेरिट के उधर हो जाऊंगा मैं। उसके चक्कर में आप जल्दबाजी में बहुत बार गलत डिसीजन लेकर गलत ऑप्शन को चूज कराते हो। जो क्वेश्चन सीरियसली एंड सिंसियरली एग्जामिनर ने ईच एंड एवरी चाइल्ड को छोड़ने के लिए ही रखा था, आप उसको अटेम्प्ट करके आ जाते हो सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद तुक्का भिड़ जाए मेरा, कि आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि ये वाला आंसर करेक्ट है, कि भाई वो ना जय माता दी करके लगा दिया टिक कि हाँ ये वाला सही लग रहा है, लगाया है हम उस पर टिक, तो आप वो अपने इंस्टिंक्ट की वजह से आप उसे कर जाते हो। दैट इज वाई अपने घर से इस तरीके के मैनिफेस्टेशंस मत लेके जाया करो कि मैं पूरा ट्राई करूंगा सारे क्वेश्चंस करने का। नो, मैं पूरा ट्राई करूंगा, करूंगी एक्यूरेसी का, मुझे मेरी एक्यूरेसी पे काम ध्यान देना है, नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस पर ध्यान कम देना है। एक्यूरेसी जानते हैं आप लोग, कितने क्वेश्चंस करें और उनमें से कितने करेक्ट करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने करें, मैं बोल दूं मैं जाऊं यूपीएससी के एग्जाम में PCS देने और बोलूं कि 150 प्रश्न आए थे, 150 के 150 करके आई हूं मैं। होते हैं हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे आते हैं, एग्जाम वाले दिन जब हम उनसे पूछते तो बोलते हैं कितने क्वेश्चन थे बेटा, मतलब ऑब्वियसली PCS में 150 प्रश्न आते हैं, तो हमने कहा कितने कर लिए, मैम 130 करके आए हैं, मैम 145 करे, हमने कहा 5 ही छोड़े खाली, बहुत बुद्धि के तेज हो। और जब उनके रिजल्ट्स आते हैं तब पता चलता है कि उनका स्कोर 100 से ऊपर भी नहीं जा पाया। 100 से ऊपर भी क्यों ना, आप ये सोचिए 145 कोई व्यक्ति क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आ रहा है, हर प्रश्न 2 नंबर का है, तो आप समझिए 300 नंबर का हो गया, 300 में से 100 भी पार नहीं जा रहे हैं उसके, क्यों, नेगेटिव में इतना कटवा के आ गया। तो वही चीज है, कृपया 24 के 24 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के दिमाग को लेके ना जाएं। कैट इज अबाउट सिलेक्शन एंड नॉट कंप्लीशन, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन कि ये मुझसे हो जाएंगे, ना कि ये कि आई हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, ओके।
देखिए, आई हैव रिटन फ्यू स्टेप्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन ऑल द आरसी पैसेजेस, जितने भी आरसी पैसेजेस हैं उनको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है। पिक द वन यू अंडरस्टैंड मोस्ट, जो आरसीज आएंगे उसमें से सबसे पहले वो करना है आरसीज में से जो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ रही है। हालांकि कैट में जाके सारी ही ऐसे लगने लगती है कि कोई समझ नहीं आ रही है, बट कोई तो एक होगी जो लगेगी ज्यादा समझ आ रही है, उसको पिक करो, उस पूरे को अटेम्प्ट करो फुल्ली, फिर सेकंड बेस्ट पर आओ और सबसे आखिर वाला जो सबसे टफेस्ट वाला हो उसको छोड़ दो। बिकॉज इट्स अ नॉर्मल साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन कि जब आप पहली पहली बार किसी चीज को करने बैठते हो, द अटेंशन, द कंसंट्रेशन इज पीक, वो यहां पर है। लेकिन जब वो पीक्ड से नीचे आने, जब समय के संग आपका टाइम जाने लगता है, दिमाग में स्ट्रेस आने लगता है, उधर टिक टिक हो रही है घड़ी की, इधर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बचे हैं, ग्राफ धीरे धीरे करके अटेंशन एंड कंसंट्रेशन गिरने लग जाता है। तो ऑलवेज हमेशा क्या करना चाहिए, जो लग रहा है जिन प्रश्नों में आप कॉन्फिडेंट हो उन्हें सबसे पहले सॉल्व कर लो, वहां पे गलती करने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। पूरे फ्रेश ब्रेन से जब आप करोगे अपने इजी वाले क्वेश्चंस को, सब लोग ऐसा करते हैं कि डिफिकल्ट वाले पहले कर लेते हैं, इजी वाले लास्ट में करते हैं। बेवकूफी होती है ये, बिल्कुल बेवकूफी होती है। इजी वाले तब करना अच्छा होता है जब आपको पक्का पता हो इसका आंसर यही है, लास्ट में सिर्फ गोला ही भरना पड़ेगा ओएमआर में और कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर लग रहा है कि सॉल्विंग भी रिक्वायर्ड है तो पहले इजी वालों को अटेम्प्ट करो, जो आपको लग रहे हैं इजी, टफ वालों को लास्ट के लिए छोड़ो, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन काम करना नहीं है, लास्ट तक आते थे शायद कुछ चमत्कार हो जाए जो आपके ब्रेन से चीजें होने लगे। बट पहले एक होल्ड बना लो अपने पेपर पे कि इतने प्रश्न मैंने करेक्ट कर लिए हैं, एक्यूरेसी मेरी मेंटेन्ड है, 90+ एक्यूरेसी जा रही है। ओके, then top scorers often attempt only 18 to 20 questions but with 85 to 90% accuracy। 24 में से 18 से 20 प्रश्न ही टॉप स्कोरर्स अटेम्प्ट करते हैं, बट उनकी एक्यूरेसी देखिए 85 से 90% के बीच में होती है। इफ यू आर दिस मच एक्यूरेट, आप उतने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अदरवाइज बात वही है, 24 कर और यहाँ एक्यूरेसी 60% हो तो ऐसे आपके 24 प्रश्न सॉल्व करना भी किसी काम के नहीं है। ओके, देन कैट आपको ट्रैप कहां पे करता है? कैट के ऑप्शंस लगते कैसे हैं? पहला ऑप्शन आपको, मतलब जो ऑप्शन लगेंगे वो ऐसे लगेंगे, लुक्स करेक्ट, पहला देखने में लगेगा कि ये सही है, और दूसरा देखने में लगेगा साउंड्स इंटेलिजेंट, मतलब ये ज्यादा करे, मतलब इंटेलिजेंट एज एन कि उससे मैच करता हुआ ये वाला ज्यादा लग रहा है। पहला वाला आपको लगेगा कि, मतलब आप ये समझिए चारों प्रश्न आपको ऐसे लगे, ऑप्शंस ऐसे लगेंगे कि इनमें से चारों ही हो सकता है करेक्ट हो, चारों ही करेक्ट लग रहे हैं, बस मुझे इनमें से बेस्ट ढूंढना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो हम यूज करते हैं ना वो ढूंढना है। तो कैट इज नॉट लाइक कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राहुल गांधी, ऑप्शन सी ममता बनर्जी, ऑप्शन डी सिद्धारमैया। इतना क्लियर कट ऑप्शंस आपको नहीं देंगे कि एक बार में एलिमिनेट कर लो कि अरे नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस भी लाइक हु इज द बेटर पीएम, जवाहरलाल नेहरू, आईपी गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। अब आपको उन सबकी चारों की पॉलिसीज को देखना पड़ेगा दिमाग में, किसकी पॉलिसीज, किसने क्या गलत किया था, किसने क्या अच्छा किया था। किसी के लिए आई के गुजराल अच्छे होंगे, किसी के लिए नेहरू अच्छे होंगे, किसी के लिए मोदी अच्छे होंगे, किसी के लिए मनमोहन सिंह अच्छे होंगे, हो गया ना सबका अलग अलग। तो वही वाले प्रश्न जो है वो कौन पूछता है आपसे, कैट पूछता है, ठीक है। ओके, ओके, नाउ दिस इज समथिंग आई हैव रिटन फॉर यू, आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू सॉल्व दिस। एक छोटा सा मैंने ये 2 स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन दिया है। सोशल मीडिया डज नॉट क्रिएट नार्सिसिज्म, इट एम्प्लीफाइज टेंडेंसीज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन इंडिविजुअल्स। ये एक नॉर्मल एक सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस मान लीजिए। व्हाट इज द मेन क्लेम? सोशल मीडिया कॉजेज नार्सिसिज्म, narcissism is increasing, social media magnifies existing traits, या people are becoming self-obsessed. Take your time, I don't want the answers, I'm saying take your time and then tell me. आराम से समय लो और बताओ। देखिए एक बार, आपको कुछ हो गया? सबने अपने अपने एक ऑप्शन सोच लिए हैं?
सोच ली सबने? ओके, श्रेयांशी, व्हाट्स योर ऑप्शन? Sorry, D is not visible. People are becoming self-obsessed. This is the option. Yes, Shreyanshi. What's your option? D for dog. Okay. Kanishka, आपका? C. रिद्धिमा? C. शेखर? C. देवांश? B. करण? C. नमन? वंशिका? C. D. C. मतलब C नहीं, मतलब SEEC बोला है मैंने. See, the question is, social media does not create narcissism. Social media, अच्छा, what is the meaning of this word narcissism? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ जरूरत थी इस वर्ड को जानने की? यहाँ मतलब जरूरत है आपको? आप में से बहुत लोग को नार्सिसिज्म का मतलब नहीं पता है, लेकिन क्या नीड है यहाँ पे जानने की? नहीं. लॉजिकली आप लगा पा रहे हो ना? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपको हर चीज के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है कि मैडम इसका मीनिंग नहीं पता, उसका मीनिंग नहीं पता. यू जस्ट नीड टू लॉजिकली थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स हियर और उसको कोरिलेट करने का प्रयास करना है खाली. नाउ लेट्स कम टू द वर्ड नार्सिसिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? चश्मा खराब हो गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नार्सिसिज्म? Superiority complex, kind of a person who thinks he is the best, a person who thinks only about himself and he thinks that he can do it better than anyone else. होता है ना लोगों के अंदर कि मैं ज्यादा बेटर कर सकता हूं या कर सकती हूं लोगों के तुलना में. दैट इज कॉल्ड नार्सिसिज्म. कह रहे सोशल मीडिया नार्सिसिज्म क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है? एम्पलीफाई करता है. एम्पलीफाई मतलब बढ़ाता है. एम्पलीफायर वर्ड यूज करते थे ना हम लोग, वो गाना भी आया था ना एम्पलीफायर, तो यार सबको पता होगा ना वो. तो इट एम्पलीफाइज टेंडेंसीज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन इंडिविजुअल्स. लोगों के अंदर जो सबके अंदर थोड़ी थोड़ी नार्सिसिस्ट क्वालिटीज होती हैं, बट सोशल मीडिया का क्या कर रहा है? उनको सिर्फ एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, बढ़ाने का प्रयास कर रहा है. ये कहीं और से क्रिएट नहीं कर देता है आपके अंदर, ये आपके अंदर ऑलरेडी उपस्थित चीजों को और बढ़ाने का काम करता है. बस इतनी बात लिखी थी. मेन क्लेम क्या है? मेन क्लेम यही है, सोशल मीडिया और नार्सिसिज्म का कंपैरिजन. सोशल मीडिया कॉजेज ना, ये तो क्लियर कट इसको विरोध कर रहा है क्योंकि वो बोल रहा है ऑलरेडी है. नार्सिसिज्म इज इंक्रीजिंग, हाँ डेफिनेटली इट इज इंक्रीजिंग, बट अभी हम और ऑप्शंस पे भी आते हैं. सोशल मीडिया मैग्नीफाइज एग्जिस्टिंग ट्रेट्स, हाँ हमारे अंदर ऑलरेडी नार्सिसिज्म है, उसको सिर्फ और भी बढ़ा रहा है. ये भी हमें ठीक लग रहा है. पीपल आर बिकमिंग सेल्फ ऑब्सेस्ड. पीपल आर बिकमिंग, बट यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट होता पीपल आर बिकमिंग मोर सेल्फ ऑब्सेस्ड. सेल्फ ऑब्सेस्ड तो वो पहले से ही है, सोशल मीडिया के आने से पहले भी थे, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से और भी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए. तो यहां वाला स्टेटमेंट हमें जो है 20% ही करेक्ट लगा, क्योंकि यहां ये कह रहा है आर बिकमिंग. दे आर नॉट बिकमिंग, दे ऑलरेडी आर, बस दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर सेल्फ ऑब्सेस्ड. तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. ये दोनों हमें थोड़े मैच करते हुए दिख रहे थे, बट उसमें भी नार्सिसिज्म इज इंक्रीजिंग, इतना सा वर्ड सोशल मीडिया वाले कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था. फॉर दैट रीजन ऑप्शन C इज करेक्ट. अब समझ में आया हाउ डू यू हैव टू डू लॉजिकल थिंकिंग? समझ गए अब कैसे करना है? अब किस किस का ऑप्शन D या B या A था? रेज योर हैंड्स. आरिश, वंशिका, श्रेयांशी एंड देवांश. अब आप बताइए कि क्या लगा था आप लोगों की, वाई D वुड बी द राइट आंसर? मतलब एम्पलीफाई या नार्सिसिज्म का मतलब नहीं पता था, या क्या लगा था आप लोगों को? श्रेयांशी बेटा क्या लगा था आपको? मतलब D क्यों चूज किया था ना? जैसे मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, मैंने C क्यों चूज किया, आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है D चूज करने का? बस वो लगा. देवांश? आरिश? बस लगा मन से. ठीक है, सही है. जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही वाला भी लगने लगेगा आप एक टाइम बाद. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली C. ओके. देन कैट डज नॉट टेस्ट योर इंग्लिश, इट टेस्ट योर एबिलिटी टू स्टे काम अंडर कंफ्यूजन. ये बात याद रखना.
ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, अगर इंग्लिश का टेस्ट होता तो आप आइल्स का एग्जाम दे रहे होते, इसका एग्जाम नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी टेस्ट करनी है तो वो चेक होगी आपकी आइल्स के एग्जाम के लिए, वो वहां जाके दीजिए आप। लेकिन यहाँ पे कैट का एग्जाम आपकी अंग्रेजी, आपका क्वांट, आपका एलआर, ये सब चेक नहीं करने बैठा है, वो चेक करने बैठा है अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करोगे, ठीक है ना। तो वॉइस प्लेड वेल होगा या क्या होगा आपका, वो देखना पड़ेगा फिर इसमें कैट के एग्जाम में। तो कैप्टन कूल बने रहना है तो एग्जाम क्लियर होगा। विराट कोहली बन गए मतलब विराट कोहली ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड परफॉर्मर यार, बट अंडर प्रेशर आई फील धोनी इज अ बेटर परफॉर्मर। हमारे ओपिनियंस ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, बट आई फील अंडर प्रेशर लेट्स बी धोनी। थला बनना चाहिए हम लोगों को, प्रेशर में भी काम रहने का है, बहुत शांत रह के चीजों को सॉल्व करना है। एकदम से अच्छा लग रहा है तो नहीं कर लेना है, ठीक है। अच्छा तो हमें जंग खाना भी लगता है लेकिन नहीं खा पा रहे ना, खा रहे हैं बट रोक लगा रहे हैं ना, कोई बात नहीं। ओके, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, रीडिंग स्किल्स। अब यहां से थोड़ा सा, अभी तक तो था वो ज्ञान था पूरा ना, ऐसा लग रहा था मैं प्रवचन देने वाली बाबा और आप लोग सुन रहे हो मेरी बात। यहां से थोड़ा सा काम की बात स्टार्ट होगी। ओके, हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू रीड एडिटोरियल्स? पहले तो मुझे बताओ एडिटोरियल का मतलब पता है आप लोगों को? व्हाट आर एडिटोरियल्स? न्यूज़पेपर पूरा, एग्जैक्टली। ओके, व्हाट आर दीज एडिटोरियल्स? लाइक आपने तो मुझे बताया कि न्यूज़पेपर का एक पन्ना है वो एडिटोरियल है, ऐसे तो न्यूज़पेपर का एक पन्ना है जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स सेक्शन आता है। व्हाट एग्जैक्टली आर एडिटोरियल्स? हु कैन टेल मी? वेरी गुड। एडिटोरियल्स आर द स्निपेट्स, ये वो सेक्शन है, वो छोटे छोटे न्यूज़ हैं। जैसे हम पढ़ते हैं इंडिया ने रूस के संग किया समझौता, बस इतनी सी बात, इतने इतने हमें जो है ये वाले हेलीकॉप्टर्स खरीदने हैं, बस इतनी बात हो गई। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स, कुछ एडिटर्स होते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं जिनका आप नाम जानते होंगे। शशि थरूर साहब एक बहुत वेल क्वालिफाइड एडिटर हैं इस तरीके से। वो लोग अपने प्रोज एंड कॉन्स फिर मेंशन करते हैं। वो जहां मेंशन करते हैं वो बताएंगे कि ये जो डील हुई है ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है, लेकिन इससे हम पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा क्योंकि जो अमेरिका है वो हम पे टैरिफ्स लगा देगा। ये सब चीजें, टैरिफ लगेगा तो हमारी इकोनॉमी कहाँ गिरेगी, और हमने अगर इस पे से फाइट कर लिया तो हमारी इकोनॉमी कहाँ बूम करेगी। ये इस प्रकार के जो इनसाइट्स होते हैं ये आते हैं आपके एडिटोरियल वाले पेज पर। और एडिटोरियल वाला पेज जो होता है दैट इज मोस्ट इंफॉर्मेटिव पेज। वहां से ही आप चीजों का एनालिसिस कर लेते हो। ये वाली खबरें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक किशोरी किशोर को लेके भाग गई, इसमें कोई कुछ नहीं बचा है। जो पढ़ने वाला सेक्शन है न्यूज़पेपर में दैट इज द एडिटोरियल वाला पार्ट। एडिटोरियल में जो है आपको डीप इंसाइट्स मिलेंगे। वो जो ऊपर मैंने टॉपिक लिखे थे ना, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, सबके एडिटोरियल्स वहां पर आते हैं, 100% आते हैं। अब जब एडिटोरियल पढ़ा जाता है तो उसे कैसे पढ़ा जाता है कि एडिटोरियल पढ़े, पहली बात तो एडिटोरियल पढ़ना आसान काम नहीं है, ट्राई करके देख लेना। द हिंदू तो उठाना मत, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लेना। टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के उसका प्लीज एक बार एडिटोरियल पढ़ने का प्रयास करना। हिंदू लेके कभी मत बैठना, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों के। मैं यूपीएससी वाले बच्चों से बना कर देती हूँ कि वो वाला न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ा जाएगा इनिशियली आप लोगों से, वो बहुत हाई लेवल की बातें हैं उसके अंदर। टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो, उसका एडिटोरियल खोलो, पढ़ना का ट्राई करो और तब समझ में आएगा। आप पूरा पेज पढ़ लियो, उसके बाद लगेगा था क्या इसके अंदर, पढ़ना क्या था हमें तो बड़ी बड़ी एकदम जैसे कहते हैं ना सुपरफिशियल बातें समझ भी नहीं आई वो कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। अब पहली चीज ये देखिए, हाउ डू यू रीड करंटली। कैसे अगर पढ़ने जाओगे तो कैसे पढ़ोगे, या तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे। इंडिया हैज साइंड एन MOU विद इजराइल ऑन द डील ऑफ दिस, ऐसे ऐसे करके आप पढ़ोगे। अंडरलाइन करने लग जाओगे कि ये भी काम का है, ये भी काम का है। ट्रांसलेट करोगे फिर हिंदी में उसको, ऑब्वियसली हम हिंदी मीडियम, मतलब एज इन हमारी मदर टंग हिंदी है तो हमें चीजें समझ में हिंदी में ही बेटर आती हैं। जब हाई फाई लैंग्वेज लिखी होती है फर्स्ट हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेटर बन जाते हैं, उसको हम पहले अपने भाषा में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ स्कूल रीडिंग, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। CAT requires structural reading. Now what is this structural reading? This is a 4-step editorial reading method, जिसमें step 1 में क्या है, read the introduction carefully. जहां भी एडिटोरियल लिखा होगा वहां एक ऊपर हेडलाइन काइंड ऑफ लिखी होगी बोल्ड ब्लैक में, पहले उसको पढ़ लो। वो जो बोल्ड ब्लैक में लिखी होती है ना, वहां इस प्रकार की बातें नहीं लिखी होती इंडिया का हुआ रूस के साथ समझौता, नो।
वहां पे एडिटर अपने आप ही बता रहा होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो वो पढ़ोगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा। दूसरा क्या करना है, टॉपिक, ऑथर का स्टैंस क्या है, ऑथर एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। आपको बच्चों वहां पे एस्से राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है कि नहीं मैम मुझे ना एक एक लाइन पढ़नी है क्योंकि अभी मुझे रटकर एज इट इज आप जाके सुनानी है वहां पे। आपका ये कंपटीशन नहीं चल रहा है। आपको पापा की तरह पढ़ना, जैसे हम लोग के पापा पढ़ते ना न्यूज़पेपर, तो वो वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करते, वो लाइन बाय लाइन उसको रटते नहीं है, वो खाली पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने के बाद एक जस्ट एक मेमोराइजिंग के लिए एक थोड़ा सा 4-6 पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि अच्छा इससे ये चीजें हो सकती हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और फिर जब चौपालें लगती हैं, चौपाल एज इन जब उनके फ्रेंड्स बैठते हैं, डिनर विनर टेबल पे बैठते हैं, तो फिर जो डिस्कशंस करते हैं ना, तो वो वाले लेवल पे आपको आके पढ़ना है। आपको बच्चों की तरह लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जा रहे, रटते चले जा रहे, एक शब्द का तुरंत डिक्शनरी खोली, तुरंत गूगल कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू चाहिए, ऑथर क्या लिखना चाह रहा था, बस उतना जानना है आपको। वर्ड बाय वर्ड करने जाओगे, न्यूज़पेपर खत्म करने में पूरा दिन लग जाएगा। इसीलिए एक ओवरऑल स्टैंस जानो कि ये कहना चाह रहा है कि रूस के साथ जो हमारा समझौता हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है, इससे हमारी जो डिफेंस है उसको बहुत पावर मिलेगी, लेकिन अब अमेरिका के टैरिफ्स के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। टैरिफ्स लगेंगे तो हमारा फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट गिर जाएगा और उसकी वजह से जो है हमारा बहुत ज्यादा इकोनॉमी में दिक्कत हो जाएगी। एक इस तरीके से पढ़ लिया, बस अंदर क्या क्या शब्द लिखे थे, कौन कौन से बड़े बड़े शब्द लिखे थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, देन आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट फ्लो। क्या होता है बेटा, कोई ऑथर जब अपना पूरा एक स्टैंस लिखता है तो वो खाली एक पर्सपेक्टिव को टच नहीं करता है, वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को टच करता है। उसके लिए वो अलग अलग पैराग्राफ उसको पैराफ्रेजिंग कर देता है। तो हर पैराग्राफ का कोई एक आइडिया होगा, उस एक आइडिया को दिमाग में रखो। पहले में इसने फार्मास्यूटिकल को बात करी, सेकंड में इसने डिफेंस के बारे में बात करी, थर्ड में इसने कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बात करी। ऐसे कर करके आपको सबका पता चल जाएगा कि ईच पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, बस उतना जाना आपने। स्पॉट कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, हाउएवर, बट, ऑल्दो, येट। हाउएवर हालांकि, ये तो सब कुछ ठीक है, हालांकि ऐसा भी हो सकता है, बट लेकिन ये भी है। लेकिन जो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स है ना, कि पूरा एक बात लिखी चली आ रही है और अचानक से कोई एक वर्ड में ब्रेक लगेगा और कहेगा बट ऐसा भी हो सकता है, हालांकि ऐसा हो भी चुका है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि होगा। ये वाले स्टेटमेंट ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाले आपके लिए होंगे, क्योंकि यहीं पर ही आपका एक्चुअली आरसी छुपा होता है। इन्हीं फ्रेजेस में ही होता है जो एक फ्लो में बात चली आती है, जहां एक ब्रेक लगते दूसरी बात चालू होती है ना, बट, ऑल्दो, येट के बाद, वहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही आप आरसी के या एडिटोरियल के कंक्लूजन पे आते हैं, वहां अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लीजिए। आप ये चीज अभी प्रैक्टिसेस में ऑब्जर्व करेंगे। आरसी के अंदर ऑथर लगभग अंत में आके ही अपनी बात रिवील करता है। रियल जो उसका क्लेम होता है वो ऐसा वाला होगा कि मोदी बनना चाहिए पीएम, नहीं योगी बनना चाहिए, नहीं राहुल गांधी बनना चाहिए, नहीं ये प्रियंका गांधी बननी चाहिए। चारों वाक्यों में वो 4 लोगों की तारीफें कर रहा होगा, 4 लोगों की बुराइयां कर रहा होगा, जिन 4 लोगों का नाम वो पीएम पद के लिए वो कर रहा है, चुनाव जिनका करवा रहा है। लेकिन लास्ट में आके उसकी रियल आपको पता चल जाएगी कि वो लेफ्ट विंग पार्टी का है कि राइट विंग पार्टी का है। वो लास्ट तक आते थे कंक्लूजन में वेरी कितना भी कोई व्यक्ति न्यूट्रल रहने का प्रयास कर ले, जब वो कंक्लूड कर रहा होता है अपनी स्पीच को, अपनी ऑथर कोई भी ऑथर अपनी राइटिंग को, पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का इंक्लिनेशन किस तरफ है। तो जब आप पूरा ऊपर से वो भ्रमित करता हुआ ला रहा होगा आपको, एकदम आप कंफ्यूज्ड हो, अरे ये है किसकी तरफ यार, ये इधर भी जाता है उधर भी जाता है, उसकी तारीफ भी कर रहा है उसकी बुराई भी कर रहा है, लास्ट में आपको पता चल जाएगा वो किस तरफ जाना चाह रहा है। आरसी में भी, क्योंकि जितनी आरसी आती हैं वो सब एडिटोरियल से उठा के दी जाती हैं। पूरी आरसी, कोई भी आरसी सेल्फ फ्रेम्ड नहीं होती हैं, आरसीज हमेशा एडिटोरियल से ही उठा के दी गई होती हैं। तो अगर आपने एडिटोरियल पढ़ना सीख लिया, एडिटोरियल समझना सीख लिया, तो आप आरसीज को भी सॉल्व करना सीख जाओगे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग to solve a good RC you need to be adept at reading editorials। अगर आप एडिटोरियल्स में एडेप्ट हैं तो आप ऑटोमेटिकली आरसी के लिए तो स्किल्ड अपने आप हो ही जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, वही बात जो मैंने लिखवाई कि 80% आरसीज में यही होता है कि जो रियल ओपिनियन होता है वो लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ होता है।
जब आप बहस करेंगे अगर मेरे से किसी टॉपिक पर, तो आप भी दुनिया जमाने की बातें करेंगे, पर जो आपका लास्ट स्टेटमेंट होगा ना मेरे प्रति, जो आप बोल के जाएंगे मेरे से, वो वही होगा जो आपके अंदर एक्चुअली आप सोचते हैं चीजों के बारे में। तो वही ऑथर के साथ भी, इसलिए लास्ट पैराग्राफ पे प्लीज स्लो डाउन करेंगे और लास्ट पैराग्राफ को ध्यान से समझ के पढ़ेंगे। ओके, देन एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स क्या होती है? पहली बात तो पैसिव रीडिंग टेक्निक क्या होती है कि बस वही पढ़ लिया, देयर वाज अ रूलर, ही हैड अ सन, हिज सन वेंट टू द स्कूल, केम एंड हैड अ वॉर, ऐसे ऐसे करके पढ़ लिया। लेकिन इसको हम ब्रेन स्लीपिंग एक्टिव रीडिंग बोलेंगे। ब्रेन स्लीपिंग मतलब आप पढ़ तो रहे हो पर मेंटली कहीं और हो, शट डाउन है, ब्रेन के न्यूरॉन्स फायर ही नहीं कर रहे हैं आपके, ऐसी वाली सिचुएशन है। चलो एक काम करते हैं कि ये करते हैं हम, पढ़िए जरा इसे। Democracy survives not because citizens are informed, but because institutions are resilient. Is author praising democracy or questioning citizens? This is a question to you. पढ़िए जरा इसको। अब देखो, कुछ पता हो ना हो आपको, इसमें रेजिलिएंट वर्ड का मतलब तो पता होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि रेजिलियंस वर्ड का मतलब क्या होता है। रेजिलियंस का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिलियंस? किसी को आता है? किसी को भी नहीं आता, गूगल कर सकते हैं आप लोग। I expect everyone to Google it. Resilience शब्द का मतलब क्या है? क्या आया? The ability to bounce back. The ability to Bounce back bounce back. from a trauma, from a depression, or from an incident or accident. आया समझ में आप लोगों को या नहीं? अभी रेजिलियंस का मतलब क्या हो गया? हमारी वो शक्ति, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ जाते हैं ना, एवरीवन गोज थ्रू अ ट्रॉमा काइंड ऑफ अ थिंग वन टाइम और द अदर, उससे बाहर, जिसे हम लोग एक शॉर्ट वर्ड में मूव ऑन कहते हैं, अपनी सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना, दैट इज नोन एज रेजिलियंस। जो रेजिलियंट है वो मूव ऑन करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। जो नॉन रेजिलियंट होते हैं, समटाइम्स सच पीपल कमिट सुसाइड, और समटाइम्स दोज पीपल फिर वो अपने वो चीज़ों को छोड़ देते हैं, वो पैशंस को या वो चीज़ों को। फिर जैसे होता है ना, कैट में आप एग्जाम्स अटेम्प्ट्स देते हैं, एक टाइम बाद आपको लगने लगता है कि आई एम अनेबल टू क्रैक इट, आप फिर क्या कर देते हैं, आप नॉन रेजिलियंट हो जाते हैं और आप कैट को छोड़ के कुछ और करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिनको प्रेशराइजिंग फील होता है तो वो सुसाइड वाला भी ऑप्शन चूज कर लेते हैं, वो लास्ट रिजॉर्ट उनके लिए लगता है उनको, बट दैट इज ऑब्वियसली नॉट द लास्ट रिजॉर्ट, बिकॉज ईदर कैट और यूपीएससी और आईआईटी, दीज आर जस्ट एन एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ, द एंटायर लाइफ इज एन एग्जाम। तो आप एक छोटे से एग्जाम के लिए पूरा एक बड़ा सा एग्जाम जो ईश्वर ने आपको दिया उसको आप नहीं वो कर सकते। बट रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक। दे आर सेइंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सर्वाइव कर रहा है इसीलिए नहीं क्योंकि सिटीजन्स आर इन्फॉर्म्ड, सिटीजन्स को चीजें पता हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि सरकारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रेजिलियंट हैं, उनके अंदर बाउंस बैक करने की क्षमता है। बाउंस बैक करने की क्षमता, सरल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो एक नेता आता है, राज करता है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी करके जाता है। जब कुछ बुरा करके जाता है तो सरकारी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं कहीं ना कहीं तो नुकसान होता होगा उन्हें, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता ना कि वो इंस्टीट्यूशंस एकदम खराब ही हो जाते हैं। फिर जब कोई और नेता आता है,
वो क्या करेगा, वो जो खराब थी उनको अच्छा करके चला जाएगा, लेकिन जो अच्छी थी शायद उनको खराब करके चला जाए। तो इंस्टीट्यूशंस में क्या चलता रहता है, एक बैलेंस बना रहता है कि कोई नेता इस इंस्टीट्यूशन को उठा के चला जाएगा तो अगला वाला इसी को आके दबा के चला जाएगा। बट मोर और लेस इंस्टीट्यूशंस के पास ये है कि दे हैव द एबिलिटी टू बाउंस। वो वेट करते रहते हैं कि एक राइट टाइम आएगा जब हमारी भी रियल पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बस इतनी सी बात इसमें कही है। लेकिन अब पूछा यह जा रहा है कि क्या ऑथर डेमोक्रेसी को प्रेज कर रहा है या सिटीजन्स को क्वेश्चन कर रहा है? व्हाट इज द टोन? आप लोग मुझे बताइए, व्हाट इज द टोन की डेमोक्रेसी की प्रेजिंग हो रही है या सिटीजन्स की क्वेश्चनिंग हो रही है? सिटीजन्स को यह क्वेश्चन किया जा रहा है कि सिटीजन्स जो हैं वो इतने भी इन्फॉर्म्ड नहीं है कि वो जाके सरकार के खिलाफ विरोध कर सके कि आपने उस इंस्टीट्यूशन को क्यों दबा रखा है, या वो ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है कि सिटीजन इन्फॉर्म्ड हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो ऑटोमेटिकली इस चीज पे है कि हमारे इंस्टीट्यूशन तो ऑटोमेटिकली बाउंस बैक कर ही जाएंगे सही टाइम आने पर। आपको क्या लगता है क्या टोन है इसकी? कौन सी वाली है? Questioning citizens. Anything else? Questioning citizens. Devansh, what's your stance in this? Controversial. अच्छा, मतलब you are saying the statement is controversial or you are saying your answer statement is controversial? There are no such statements that are controversial in CAT. Either it is one side or it is the second side. Okay, tell me what is the tone भाई, कुछ तो सोचो। sarcastic, kind of sarcastic है। sarcastic क्यों है? sarcasm है किनके ऊपर? citizens के ऊपर, कि भाई तुम लोग सो रहे हो क्या? तुम लोग की अगर इंस्टीट्यूशंस पे कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं अटैक करते हो गवर्नमेंट पे? अटैक एज इन मारकूटाई वाला अटैक नहीं, प्रोटेस्ट करके या पिटिशंस देकर क्यों नहीं प्रोटेस्ट करे? तो दैट इज अ काइंड ऑफ सरकास्टिक टोन। इसे कहते हैं टोन को पहचानना। यहां से टोन पहचानी जाएंगी। अब कुछ टोन्स हैं जो मैंने आपको लिख के दी हैं, वो ये रही। एक टोन का नाम है क्या? क्रिटिकल। एक का नाम है एनालिटिकल। एक का नाम है सरकास्टिक। एक का नाम है ऑप्टिमिस्टिक। एक का नाम है स्केप्टिकल और एक का नाम है न्यूट्रल। अब ये वर्ड्स तो हमने पढ़े हैं, लेकिन इन वर्ड्स की एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं पता और हम इसको ऐसे लेट गो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ही हमारे आरसी का कोर बना रहा है। आरसी में यही तो पूछा जाता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर। तो आई हैव गॉट थिंग्स हियर। पहला आ जाता है क्रिटिकल। ध्यान से पढ़ेगा अब इन चीजों को। सबसे पहला दिया हुआ है क्रिटिकल। क्रिटिकल के लिए उन्होंने बताया है द ऑथर पॉइंट्स आउट फ्लॉज, वीकनेसेस और प्रॉब्लम्स इन एन आइडिया, सिस्टम और आर्ग्यूमेंट। अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता, द पॉलिसी ओवरलुक्स द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज इट क्लेम्स टू एड्रेस। अगर ये स्टेटमेंट आपका दिया होता आरसी के अंदर, ये कंप्लीटली क्रिटिकल होता। क्रिटिकल वर्ड क्रिटिसिज्म से बना है। क्रिटिसिज्म वर्ड का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, यानी कि किसी की नेगेटिव चीजों को दिखाना, फ्लॉज को, दिक्कतों को दिखाना। अगर आप इस वाक्य को पढ़ेंगे, द पॉलिसी ओवरलुक्स द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज इट क्लेम्स टू एड्रेस, क्या बताना चाह रहा है ऑथर? कि ये एक पॉलिसी है जो कि उन परेशानियों को दिखाती है, उन इनइक्वालिटीज को, असमानता को दिखा रही है, जो सरकार या जो भी इंस्टीट्यूट है वो क्लेम करती थी कि हम आके इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या किया जा रहा है? उस गवर्नमेंट की या उस सिस्टम की बुराई की जा रही है, उसकी तारीफ की जा रही है या सरकाजम किया जा रहा है? क्लियर कट आलोचना करी जा रही है कि आप तो कहते थे कि हम आके इसको ठीक कर देंगे, बट आपने अभी भी क्या करा? ओवरलुक कर दिया इस थॉट को। दिस इज व्हाट अ क्रिटिकल टोन मीन। क्रिटिकल टोन का मतलब क्या होगा? कि आप स्ट्रेट अवे किसी की बुराई या क्रिटिसिज्म ही कर रहे होंगे। ओके, क्या क्या वर्ड्स हैं? जैसे फेल्स टू वर्ड आपको देखने को मिल गया, प्रॉब्लमैटिक वर्ड देखने को मिल गया, इनएडिकेट, ओवरलुक, शॉर्टकमिंग। इस प्रकार के अगर आपको वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं अपने सेंटेंस में लिखे हुए, उसमें उसकी टोन क्रिटिकल होती है। कैसी होगी? क्रिटिकल टोन होगी उसकी। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे आइए जरा। सरकास्टिक। सरकास्टिक का मीनिंग क्या होगा? ऑथर यूजेस आयरनी और मॉकरी टू इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज समथिंग। इट ऑफन साउंड्स स्लाइटली ह्यूमरस बट शार्प। मतलब वो इस तरीके के तंज कसेगा, टॉन्ट करेगा हंस के, कि आपको लगेगा कि ये तो हंसने वाली बात थी, बट वो एक्चुअली डीप डाउन आपके ऊपर
टॉन्ट किया जा रहा होगा, उसको आप क्या बोल देंगे, सरकास्टिक। जैसे कि इससे पहले वाला स्टेटमेंट था कि डेमोक्रेसी लोगों के जानने से नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी तो चल रही है क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाउंस बैक कर जा रही हैं, सरकारें आ रही हैं, दबा रही हैं किसी इंस्टीट्यूशन को, दूसरी सरकारें आ रही हैं उसको उठा दे रही हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस का जो काम है वो यही हो जा रहा है कि कोई सरकार उसका काम रोक रही है, कोई सरकार उसका काम चलवाने दे रही है, तो इस प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी चल रही है। दैट वाज अ सरकाज़म। ये आपके ऊपर टॉन्ट किया गया था, किनके ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर, कि सिटीजन्स आज भी सो रहे हैं, उन्हें यही नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अब क्यू वर्ड्स देखो, इट इज अम्यूजिंग हाउ apparently, सॉरी, हेलो रिया, क्लास में हूँ अभी मैं, क्लास में हूँ बेटा अभी मैं, हाँ अभी मैं ना 12 बजे बताऊँ, बताओ, हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मेरे पापा फ़ोन कर रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, तो कौन से वाले घर पर आए हुए हैं वो मेरे, अच्छा जो बन रहा है ये वाले घर पर है, चलो चलो मैं देखती हूँ अभी, एक सेकंड, ओके ओके ठीक है। कहाँ पर है, घर चला जा ज़रा, मम्मा को वो जो घर बन रहा है ना वहाँ पे डोमिसाइल के लिए चेकिंग करने आया है वो व्यक्ति। हाँ मम्मा फ़ोन नहीं उठा रही हैं, तो रिया की कॉल आई थी कि वो वेट कर रहा है उस घर पे। ठीक है, ओके ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अरे ठीक है भाई, बाद में गाली वाली बाद में बक लेना। अब आ जाओ, इट इज रिमार्केबल हाउ एक्सपर्ट्स डिस्कवर सॉल्यूशंस ओनली आफ्टर क्राइसिस अकर। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि ये सोचने वाली बात है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो सॉल्यूशंस तब निकालते हैं जब वो चीजें हो चुकी होती हैं, है ना। तो व्हाट इज दिस, दिस इज, हाँ ठीक है बुराई हो रही है, आलोचना हो रही है, बट आलोचना से ज्यादा इसमें मॉकरी, टॉन्ट, तंज इंक्लूडेड है। तो इसलिए हम इसको कौन सी टोन में इंक्लूड करेंगे, सरकास्टिक में करेंगे। कि मतलब जब पूरी गांव लुट जाता है तब याद आता है कि अच्छा पुलिस वाले को भी बुलाना था, तो वो समझे ना आप लोग। तो दिस काइंड ऑफ लाइट ह्यूमर जो आता है आपके स्टेटमेंट्स में, दैट इज नोन एज अ सरकास्टिक टोन, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट में था। कमिंग टू द एनालिटिकल मीनिंग, the author examines the topic logically, breaking it into parts and evaluating it carefully without emotional involvement. Analysis word में emotions नहीं आते हैं, clear cut analysis होता है। पहले example देख लो आप, फिर समझोगे। While economic growth has increased, income inequality remains persistent. एक normal statement है कि भले ही इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ रही है, लेकिन जो इनकम में इनइक्वालिटी है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो ये वाली इनइक्वालिटी अभी भी बढ़ रही है। ये कहीं से कहीं तक आलोचना नहीं है, सरकाज़म नहीं है, क्लियर कट एनालिसिस है। इसका कहीं भी किसी के लिए, किसी के ऊपर ये चीज़ वो नहीं करी जा रही है प्रोजेक्ट की आपकी गलती है, बस बोला जा रहा है, एनालिसिस है कि इनकम ग्रोथ एक तरफ बढ़ रही है पर दूसरी तरफ इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ती जा रही है। क्या क्या क्यूज हो सकते हैं, एविडेंस सजेस्ट, डेटा इंडिकेट्स, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, इट कैन बी आर्ग्यूड। इस प्रकार के वर्ड्स अगर किसी वाक्य में लिखे होंगे तो उसकी टोन कैसी होगी, आपकी एनालिटिकल होगी। अच्छा, अगला देखिएगा, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वेरी क्लियर, जहां होप, पॉजिटिवनेस, कॉन्फिडेंस, फ्यूचर को लेकर दिख रहा होगा, वहां पे आप क्या कहेंगे, टोन कैसी है उसकी, ऑप्टिमिस्टिक। प्रॉमिसिंग, एनकरेजिंग, होपफुल, पोटेंशियल, ऐसे वर्ड्स अगर लिखे हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होल्ड इमेंस पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। क्लियर कट दिख रहा है ना कि यहाँ पे पोटेंशियल वर्ड आ गया, तो यानी कि ये कैसी टोन हो गई आपकी, ऑप्टिमिस्टिक टोन हो गई। स्केप्टिकल,
The author doubts, claims and questions their validity, not fully rejecting but not convinced either. है ना, मतलब हम ये नहीं कह रहे आपने जो बोला वो गलत है, बट हमें डाउट है, तो वो डाउटफुल वाली सिचुएशन को क्या कहा जाता है? स्केप्टिकल. हम रिजेक्ट नहीं कर रहे लेकिन हमें कंप्लीटली कन्विंस भी नहीं कर पाए हैं आप कि हम आपकी बात को माने या ना माने. एग्जाम्पल, इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर दीज रिफॉर्म्स विल प्रोड्यूस लास्टिंग चेंज. ये अभी भी अनक्लियर है कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं ये एक लंबे समय तक कुछ बदलाव ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड स्केप्टिक, कि अब आप यहाँ पे स्केप्टिक हो रहे हो कि ये चीज चेंज ला भी पाएगी या नहीं भी ला पाएगी. क्या क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं? डाउटफुल, क्वेश्चनेबल, रिमेन्स अनक्लियर, इट इज अनसर्टेन वेदर. इस प्रकार के वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो आपकी टोन क्या रहेगी? स्केप्टिकल रहेगी. एंड आई थिंक द लास्ट इज न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑब्जेक्टिवली, ना तो कोई ओपिनियन है ना तो कोई इमोशन है, ना तो ह्यूमर है ना ही कोई ओपिनियन है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है. न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में बोला जाए, द रिपोर्ट आउटलाइन 3 मेजर ट्रेंड्स इन अर्बन माइग्रेशन. कुछ बताया गया अच्छा है बुरा है, कुछ बताया गया कि सरकास्टिक है, हंसी बनाई जा रही है, टॉन्ट किया जा रहा है? नहीं, बस बोला गया है कि रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि माइग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं, वट एवर बी इज रिटन. हाँ, 3 ट्रेंड्स देखे गए हैं अर्बन माइग्रेशन, बस एक असर्टिव सेंटेंस दिया गया है. इसको कहेंगे क्या? न्यूट्रल टोन. क्या क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं? रिपोर्ट के बारे में बात कर दी जाए, डेटा के बारे में, स्टेट्स, डिस्क्राइब्स, अकॉर्डिंग टू, ऐसे वर्ड्स का अगर यूज किया जाता है तो इट इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल. तो हमने कौन कौन सी टोन पढ़ ली? सरकास्टिक पढ़ ली, एनालिटिक पढ़ ली, देन पॉजिटिव पढ़ ली, क्रिटिकल पढ़ ली, स्केप्टिकल पढ़ ली, ऑप्टिमिस्टिक पढ़ ली, और हमने फिर ये न्यूट्रल पढ़ ली. ये सारी टोन है जो आपके कैट की आरसीज में आपसे पूछी जा सकती हैं. आई थिंक आई हैड गिवन, हाँ पहले तो ये देख लो एक बार, ये चीजें मैंने लिखी थी. क्रिटिकल का मतलब नेगेटिव नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना. बहुत बच्चों को ऐसा लगता है क्रिटिकल मतलब नेगेटिव है. नो, क्रिटिकल इज अ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट जहां बुराई करी जा रही है, लेकिन इट इज लाइक कि आपकी आंखें खोलने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए. नेगेटिव नहीं बताया जा रहा है दैट जो भी सिस्टम है वो गलत है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि सिस्टम के अंदर ये गलती है, इसको करेक्ट करिए. सो क्रिटिकल इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव, स्केप्टिकल इज नॉट क्रिटिकल. स्केप्टिकल में दे आर नॉट रिजेक्टिंग, दे आर नॉट सेइंग आप गलत हैं, वो ये बोल रहे हैं हाँ ठीक है आप सही हो सकते हैं, बट अभी मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ है कि आप ठीक हो सकते हैं. एनालिटिकल का मतलब न्यूट्रल नहीं होता है. एनालिटिकल और न्यूट्रल में यह फर्क होता है, एनालिसिस में किसी चीज की इन डेप्थ बात को लिखा गया होगा काट काट के, बट न्यूट्रल इज डायरेक्टली उठा के फैक्ट को स्टेट कर दिया गया होगा. जैसे सन, सॉरी, हाँ बोल. रिया के घर पर, रिया का फोन आया था अभी, रिया बोल रही थी उसके घर पर है. रिया का नंबर दूं क्या? ठीक है सही है. ओके, कमिंग टू क्रिटिकल. क्रिटिकल क्या करता है? गलतियों को उजागर करने का प्रयास करता है. स्केप्टिकल क्या करता है? आपने जो क्लेम किया है कि मैम आई विल क्रैक द एग्जामिनेशन दिस ईयर, आई वुड से आई एम स्केप्टिकल. व्हाई? बिकॉज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू आर डूइंग, आई एम स्केप्टिकल कि वेदर यू विल बी एबल टू क्रैक इट और नॉट. डाउटफुल सिचुएशन. एनालिटिकल लॉजिकल इवैल्यूएशन करेगा, और न्यूट्रल वाला कोई भी ओपिनियन नहीं देता है, सिंपल सी बात कर देता है बस. ओके ठीक है, ये वाला पढ़ो जरा, पहला वाला. इट इज अम्यूजिंग हाउ पॉलिसी मेकर्स बिलीव डेटा सॉल्व्स एवरीथिंग. इट इज अम्यूजिंग. हाँ, क्या लगता है भाई टोन कैसी है इसकी? आर यू श्योर? इज इट सरकास्टिक और इज इट एनालिटिकल और न्यूट्रल? क्या लगता है? सरकास्टिक है. ठीक है. हाँ, द एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट रिफॉर्म इज ओवरड्यू. क्या रहेगा? आरिश क्या रहेगा? एनालिटिक, क्रिटिकल और एनालिटिकल. व्हाई क्रिटिकल? रिफॉर्म इज ओवरड्यू. रिफॉर्म अभी भी होना बाकी है, आलोचना भी तो हो रही है ना एक प्रकार से. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाइल टेक्नोलॉजी प्रॉमिसेस एफिशिएंसी, इट्स सोशल कॉस्ट रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड. श्योर? करण, व्हाट डू यू थिंक? क्रिटिकल. शेखर, व्हाट डू यू थिंक?
ओके वो आप मत ध्यान दो। कॉशियसली क्रिटिकल, कॉशियसली क्रिटिकल का मतलब ये दिखाया जा रहा है कि सतर्क रहने की जरूरत है इस वाले क्रिटिक्स में, ठीक है। अच्छा, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको ध्यान देनी है। पहली मिस्टेक ये है, बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं पढ़ना है और बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं पढ़ना है पैसेज को, ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। इंपॉर्टेंट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीवन, एवरी वर्ड एंड गेटिंग इमोशनली अटैच्ड टू एवरी वर्ड, कि हर शब्द की मीनिंग जाननी है हमको और हर शब्द के पीछे के इमोशंस को ढूंढना है हमें। ये काम आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आप थिएटर आर्टिस्ट नहीं हो जो आपको हर शब्द को जानना होगा और हर शब्द पे एक्टिंग करनी होगी। आपको खाली क्या करना है, अपना काम बनता बस उतना काम आपको निकालना है उस पैसेज को लेकर। पैसेज को दिल पे लेके नहीं बैठ जाना है कि अरे अरे ये तो मिसोजिनी पे ऐसे बात कर रहे हैं, ये तो पेट्रियार्की पे ऐसे बात कर रहे हैं, कि कोई अगर पैसेज में जो है वो मोदी की तारीफ हो गई तो राहुल गांधी वाले चढ़ गए, राहुल गांधी की तारीफ हो गई तो मोदी वाले चढ़ गए। ये आपस में पॉलिटिकल गेम कर रहे हो वहां बैठ के, फिर ये नहीं करना है। एकदम ऐसे ध्यान रखना है, न्यूट्रल माइंडसेट के साथ बैठिए। हर स्टेटमेंट से इमोशनली अटैच नहीं होना है, हर वर्ड से इमोशनली अटैच नहीं होना है, एकदम न्यूट्रल होके वहां पे आपको काम करना है। वही बात मैंने लिखी, क्योंकि बच्चे अधिकतर ऐसा कर जाते हैं, उनके ओपिनियंस आंसर में ज्यादा रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। बहुत बार जब मैं चेक करती हूँ चीजें, पैसेजेस, तो दिखने लगता है कि बच्चे का ओपिनियन उनके आंसर्स पर हावी होने लगे हैं, तो वो नहीं करना है आपको। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है उसको ऐसे पढ़ो कि एक नॉर्मल पढ़ने का काम है। ऐसे नहीं पढ़ो कि अरे मेरे ओपिनियन तो ये थे इस टॉपिक को लेकर, ऐसे नहीं पढ़ना है। ओके, अगेन वही चीज, यू डू नॉट नीड 100% अंडरस्टैंडिंग, व्हाट यू नीड इज 70% क्लैरिटी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन स्किल्स। बस इतना आपको चाहिए स्कैट के लिए। देन एक आपके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाँ ये ले लो। Capitalism thrives on innovation, yet innovation often destabilizes the very markets it aims to expand. टॉपिक क्या है? क्या ऑथर प्रो कैपिटलिस्ट है? क्या टोन पॉजिटिव है या कॉशियस है? बताइए, पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। हो गया सभी का? तीनों आंसर्स आ गए? हम ये प्रो कैपिटलिस्ट का क्या मतलब है? कैपिटलिज्म वर्ड का मीनिंग पता है आपको? कैपिटलिज्म वही होता है, ऐसी इकोनॉमी जिसका संबंध मेजरली बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, इन सबसे होता है। तो उसे कैपिटल मतलब वही है कि ज्यादा कमाओ और अपनी जिंदगी जियो, वो वाली उसको कैपिटलिज्म कहते हैं। प्रो मतलब उनका फेवर में। हो गए तीनों सबके? शेखर, देवांश आपके हो गए? ओके, वंशिका, व्हाट इज द टॉपिक यू थिंक? उसका जो आया है डोमिसाइल वाला, एक सेकेंड। हाँ जी वंशिका बताइए, क्या लगता है बेटा, व्हाट इज द टॉपिक? कैपिटलिज्म रिलेटेड टू इनोवेशन। ओके, व्हाट डू यू थिंक आदित्य? रिया बेटा मेरे को वो जो आए हैं वो देखने, उनका नंबर मेरे को टेक्स्ट कर दो, ठीक है? अच्छा एक काम करो, वहां पे देखो भैयू खड़ा है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप मेरे को कर दो। भैयू का नंबर है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मेरे को ही कर दो और मैं उसे फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है? व्हाट्सएप पे कर देना बेटा, ठीक है? हाँ जी, सेम टॉपिक। सौहार्द? ओनली इनोवेशन। आरिश? इनोवेशन। करण? नमन? कैपिटलिज्म। रिद्धिमा? कैपिटलिज्म।
आप capitalism. See, we got majorly 3 answers. The first was capitalism, the second was innovation, and the third was capitalism affected or innovation affecting capitalism. ठीक है. If we talk about topic, see the topic is kind of कि capitalism thrives on innovation. Capitalism innovation पर depend करता है, yet innovation often destabilizes the very market it aims to expand. अगर आप मुझसे सबसे पहला पूछोगे मेरा आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक दो जो ये आपको एक पूरा सेंटेंस दिया गया है, ये किसी एक बड़े टॉपिक में से उठा के दिया गया है, जिस टॉपिक का थीम कैपिटलिज्म रहा होगा, जिस टॉपिक का पूरा थीम कैपिटलिज्म रहा होगा. और वो अभी आपको बताया था ना मैंने, कोई भी एडिटर अगर अपना कोई एक लिखता है तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स को लिखता है, तो उसमें उसने कैपिटलिज्म का एक टॉपिक इनोवेशन चूज किया होगा. तो कैपिटलिज्म कैसे इनोवेशन से अफेक्ट हो रहा है वो वाले पैराग्राफ में से उसने ये लाइन निकाली है. बट अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा इनोवेशन पर नहीं जा रहा है, ये पूरा का पूरा कैपिटलिज्म पर जा रहा है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है कि कैपिटलिज्म से इनोवेशन हो रहा है, और इनोवेशन कभी कभी इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देता है कि वो उस मार्केट को जिसे उसे एक्सपैंड करना था वो उसी मार्केट को डिस्टेबलाइज कर दे रहा है. यानी कि यहाँ मेन एस्पेक्ट इनोवेशन नहीं है, यहाँ पे मेन चीज क्या है, कैपिटलिज्म है. सो द टॉपिक इज कैपिटलिज्म हियर एंड नॉट इनोवेशन. कैपिटलिज्म अफेक्टिंग इनोवेशन, इट कुड बी राइट, बट द मोस्ट करेक्ट वुड बी capitalism. Okay, is the author pro-capitalist? Yes or no? Kanishka, what do you think? No. What do you think? आप? देवांश? करण? No. आप बताइए. आरिश? आप? अच्छा, आप लोगों को क्यों लगा कि जो ऑथर है ही इज नॉट प्रो कैपिटलिज्म, वो प्रो कैपिटलिस्ट नहीं है, ऐसा क्यों लगा आप लोगों को? नो तो सभी ने दिया, किसी ने यस नहीं बोला. रीजन दीजिए कि क्यों. पर डिस्टेबलाइज तो इनोवेशन कर रही है ना. एक्चुअली द ऑथर इज प्रो कैपिटलिस्ट. द आंसर इज यस. आपने खाली एक वर्ड देख लिया डिस्टेबलाइज, पर आप एक बात ये नहीं देख पाए कि उसने क्या बोला, कैपिटलिज्म थ्राइव्स ऑन इनोवेशन. कैपिटलिज्म नवाचार पे डिपेंड करता है, पर उन्होंने कहा फिर भी इनोवेशन कभी कभी क्या करता है, ऑफन कभी कभी हुआ ना, इनोवेशन कभी कभी क्या करता है, जिस मार्केट को बढ़ाना था, कैपिटलिस्ट मार्केट को बढ़ाना था, उसी को ही डिस्टेबलाइज करके रख देता है. यानी कि क्लियर कट दिख रहा है कि उसे ये इनोवेशन एक आलोचना लगी है कैपिटलिज्म की फील्ड में. और इसका मतलब ये होता है कि ऑथर कैपिटलिस्ट है और वो ये दिखा रहा है कि इस कैपिटलिज्म में इनोवेशन ने आके काफी बार चीजें खराब कर दी हैं, तो फिर वो प्रो कैपिटलिस्ट क्यों नहीं होगा. गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया कि वो प्रो कैपिटलिस्ट क्यों हुआ? क्योंकि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वो कैपिटलिज्म में बिलीव कर रहा है और वो हमें बताना चाह रहा है कि इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी बार इनोवेशन ही विभीषण बन जाती है कैपिटलिज्म के, वो उसी को ही गिरा देती है. ठीक है, तो ही इज अ प्रो कैपिटलिस्ट. द थर्ड इज द टोन पॉजिटिव और कॉशियस? स्टार्टिंग फ्रॉम आदित्य, वंशिका, आरिश, सौहार्द, शेखर, देवांश, करण, श्रेयांशी, वंशिका, सॉरी वंशिका कह रही हूँ, कनिष्का, cautious. The tone is absolutely cautious because it's trying to explain कि if not kept a check on this innovation पूरे कैपिटलिस्ट मार्केट को डिस्टेबलाइज कर देगी. तो जब आप इसे पढ़ रहे होंगे एडिटोरियल को, तो ये एक प्रकार से आपके लिए एडवाइस होगी कि इनोवेशन पे चेक रखना जरूरी है. तो इट इज अ कॉशियस टोन. ठीक है, समझ में आ गया हाउ द आरसी थिंग इज गोइंग? ओके, ये तो सब ऐसे ही बकवास लिखी हुई है. ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. राइट इट इन अ पेपर. ओके, पेन पेपर पे लिखो इसको, इसके आंसर्स को. सॉल्व इट ऑन. क्या कर दूं मैं? ठीक ही तो नहीं हो रही यार मेरे से. ये
अच्छा ये बोल रहे हो, मुझे लगा इसको जूम आउट करना है, वो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। अब ठीक है, दिख रहा है ना? नंबर अजय गुप्ता लेखपाल। भाइयों हो गया, लेट अदर्स डू, फिर उसके बाद करवाते हैं। वाई कॉलिंग इन पांचाल टुडे? हो गया आप सबका? फिर से हो गया? अब ठीक है? ये हो कैसे जा रहा है ऊपर? एक्चुअली आपके बाल लग रहे हैं ना बाल, और आपका फर कोट भी लग रहा है। अल्टार छोटा है यार ये। देना पड़ता है। दैट वॉज वेरी रूड, डोंट डू इट अगेन। हो गया? फर्स्ट हो गया आप सबका? सेकंड पर आ जाए। नंबर भेज दिया, अजय, अजय नाम है उसका, ठीक है? ठीक है, सही है, सही है, ओके। पैसेज फिर से खोलना पड़ेगा क्या? Yes, ma'am. डन? टोन डिसाइड हो गई? यस। हो गया? सी द थर्ड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumption underlying the passage? Users are unaware of algorithms. Vulnerabilities already exist in individuals. Social media companies are non-profit organizations and anxiety cannot be measured. ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लिए। नाउ कमिंग टू द पैसेज अगेन। Social media does not manufacture insecurity, rather it monetizes pre-existing vulnerabilities. Platforms thrive not by creating anxiety but by identifying and amplifying it through algorithmic precision. पढ़ लिया? आ जाए क्वेश्चंस पे। एक बार फिर से क्वेश्चंस देख लो। नमन हो गया? कर रहे हैं। रिद्धिमा आपका? शेखर लिख लिया आंसर्स? ग्रेट, आगे बढ़े। पैसेज 2 है। पहले क्वेश्चन देख लो। नहीं, वो दूसरा पैसेज स्टार्ट हो गया। हाँ, पहले क्वेश्चन फिर भी ना, वो दोबारा आना ही पड़ेगा। द ऑथर प्राइमरली एम्फसाइजेस सिटीजन्स आर वेल इन्फॉर्म्ड, institutions play a stabilizing role, democracy is falling, ignorance is increasing. Options ये रहे, क्वेश्चन ये रहा। ये तो अभी ऊपर समझाया ही था मैंने, ये वाला। Done? Everyone? Which of the following would weaken the author's argument? ऑथर के आर्ग्यूमेंट को इनमें से कौन सा वाला कमजोर करेगा?
हो गया? पैसेज तो नहीं खोलने की ज़रूरत है, पैसेज तो रट गया होगा अब तक। शेखर खोलना है पैसेज? हो गया? सबने लिख लिया इसका आंसर? कनिष्का डन बेटा? ठीक है। टोन क्या है? ऑप्टिमिस्टिक, सरकास्टिक, न्यूट्रल या एनालिटिकल? टोन हो गई होगी। पर्पस ऑफ द एडिटोरियल बताइए। व्हाट्स द पर्पस ऑफ द एडिटोरियल? Entertain reader, present factual data only, persuade readers towards a viewpoint, describe events without opinion. You don't have to tell the answer, you just have to note it down. We'll be discussing all later. Done? These are not important questions for you. Okay, now 6 तक के आंसर्स देख चेक कर लो आप अपने। C, C, B, B, C, B. C, C, B, B, C, B. हाँ, मतलब अभी आंसर्स कर लिए, लिख लिए ना? पहले मुझे ये बताइए, व्हाट आर द स्कोर्स इंडिविजुअली आउट ऑफ 6? आपके कितने करेक्ट हैं? वंशिका, क्वेश्चन तो बहुत सारे, कौन सा वाला स्पेसिफिकली बताओ। पहले आंसर तो बताओ, किसने किसके कितने, वो तो मैं देख लूं पहले। मैंने तभी बोला था लिख लो, अब वो टाइम वेस्ट होता है ऐसे। नेक्स्ट टाइम से प्लीज अपने आंसर्स लिख लेना आप लोग कॉपी पर। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है एंड 6th ये है। नहीं, कायदे में तो 7 क्वेश्चंस है ना। द 7th क्वेश्चन का आंसर वाज सी ऑल्सो, ठीक है। सी सी बी बी सी बी बी सी बी सी, ठीक है। 7 क्वेश्चंस हैं। तो वंशिका हाउ मेनी यू गॉट? 6 करेक्ट, वेरी गुड। 5, 4, 3, नमन 5, करण 4, 5, 4, रिद्धिमा 6, 5, 4. So we've got only Vanshika and Riddhima who've got 6 answers correct out of 7. कौन सा गलत हुआ रिद्धिमा? 5th गलत हुआ आपका, 2nd one. Coming to 5th question number 5 ना, this. Which of the following would weaken the author's argument? तो आपने क्या लगाया था? बी करा था। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स इंप्रूव डेमोक्रेसी। नहीं बेटा, ये तो स्ट्रेंथन करेगा ना। ये वाला अगर वो क्लेम लिख देगा तो स्ट्रेंथन करेगा उसके पॉइंट को, कि क्योंकि पीपल आर नॉट इन्फॉर्म्ड तो उनको तो और वो मिलेगा। बट इंस्टीट्यूशंस ऑफन कोलैप्स ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन। नहीं, वो यही लिखी हुई है कि भले ही कितने से कितनी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस में बाउंस बैक की कैपेबिलिटी है। दे डू नॉट कोलैप्स, दे बाउंस बैक। तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। ये वीक कर देगा उसके आर्ग्यूमेंट को। वो ये कहना चाह रहा है हमारे इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, बट ये वाला उसको वीक कर रहा है कि ये तो कोलैप्स करने की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, आपका कौन सा था बेटा? 2nd ना। क्वेश्चन नंबर 2, द टोन ऑफ द ऑथर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अप्रिशिएटिव, न्यूट्रल, क्रिटिकल एंड सरकास्टिक। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं। सोशल मीडिया डज नॉट मैन्युफैक्चर इनसिक्योरिटी, ये इनसिक्योरिटी को बनाता नहीं है, बल्कि मोनेटाइज करता है प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज को। वल्नरेबिलिटीज मतलब हर व्यक्ति के अंदर कुछ तो ऐसे वीक पॉइंट्स होते हैं जिसको सोशल मीडिया और एलिवेट करने का काम करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे किसी किसी व्यक्ति का अटेंशन स्पैन कमजोर है। अटेंशन स्पैन मतलब एक वो लंबे समय तक किसी एक चीज पर अटेंटिव नहीं रह सकता कोई व्यक्ति। सोशल मीडिया के आने से उसकी अटेंशन स्पैन और खराब हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वो 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स का जो रील वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या कर रहा है, वो उसको आदत डाल दे रहा है 15 सेकेंड्स तक ही कहीं पर कंसंट्रेट करना है। 15 सेकेंड्स के बाद दिमाग गायब, कहीं और आना है। अब क्या हो गया है, एक टाइम हुआ करता था कि लोग वो, यू रिमेंबर दोज, ये जो आपके थे ना यूट्यूबर्स थे काफी सारे, भुवन बम था, देन बहुत सारे और भी नाम थे यार। एक टाइम था वी यूज्ड टू लिटरली वॉच वीडियोज एट लेंथ। उन लोग की जब ये लोग रिलीज किया करते थे अपनी वीडियोज को, तो हम लोग इनकी वीडियोज को पूरा यूट्यूब पे जाके देखा करते थे।
बट करंटली वी गाइज आर नॉट सीइंग इट. वी गाइज आर जस्ट वेटिंग फॉर द रील्स टू कम. कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी हुई है तो हम वो स्टैंड अप कॉमेडी को देखने अब सिर्फ तभी जा रहे हैं जब वो रील पे बड़ी वायरल हो गई है. कोई सॉन्ग को सुनने तभी जा रहे हैं जब वो रील पे बहुत वायरल हो गया है. तब तक हम नहीं जा रहे हैं ना. अब हमें बोरिंग लगने लगा है वहां तक जाना. और अब अधिकतर तो ये हो गया कि काफी सारी, इनफैक्ट व्हाई टू ब्लेम पीपल, आई एम अमंग वन ऑफ देम, जो पूरी मूवीज नहीं देख रहा है जस्ट टू लाइक रील पे आधी मूवी देख ली है कि ठीक है पूरी मूवी 3 घंटा देखें कैसे, लाइक 3 घंटा है ही नहीं मेरे पास एक मूवी देखने के लिए. कब से मैं सोच रही हूँ मर्दानी 3 देखनी है पर नहीं देख पा रही हूँ, टाइम नहीं, बट रील देखने का बराबर टाइम है, रील स्क्रॉल करने का बराबर टाइम है. सो दिस इज वाई अटेंशन स्पैन आपका वो हो रहा है. तो क्या है, मेरे अंदर वल्नरेबिलिटी थी मान लो ये वाली अटेंशन वाली, तो मेरी प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया किसने? सोशल मीडिया ने. Platforms thrive not by creating anxiety but by identifying and amplifying it through algorithmic precision. Platforms जो ये बढ़ रहे हैं, Instagram, YouTube, ये सब जो इतना आपको आज दिख रहे हैं प्रॉस्पर करते हुए, हर व्यक्ति के फोन पे आपको ये देखने को मिलेंगे. They are not creating anxiety. ये जब हम रिसर्च करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स बच्चों में एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं. They are not creating anxiety. उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि किसका क्या कमजोर पॉइंट है. और जो एल्गोरिदम वर्ड होता है ना, आपने देखा होगा, आप एक प्रकार की रील्स देखना शुरू करते हैं फिर आपके पास वही प्रकार की रील्स आना शुरू हो जाएंगी. दिस इज वेयर दे आर हिटिंग यू. व्हेन यू आर समटाइम्स यू आर सैड एंड यू लाइक 2-3 रील्स ऑफ नुसरत साहब, अब आपके पास नुसरत जी की रील्स आती रहेंगी. व्हेन यू आर काइंड ऑफ, आपने कुछ वल्गर कंटेंट को देख लिया और यू लाइक्ड इट 2-3 रील्स, देन दे विल स्टार्ट सेंडिंग यू दैट. नाउ योर एंटायर फीड इज फुल ऑफ ईदर सैड रील्स और वल्गर कंटेंट और काइंड ऑफ फनी कंटेंट. जो भी आपने एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा आपने देख लिया वो आने लग जाएगा. अब आप उसको हटा नहीं पाएंगे. और पहले ये था, आप इंस्टाग्राम की फीड को चेंज नहीं कर पा रहे थे डिलिबरेटली, आप अभी नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर सकते हैं. अब आप जाके कंटेंट प्रेफरेंसेस को चेंज करेंगे तो आपकी फीड जो है वो रीफीड दोबारा से चेंज हो जाएगी, दोबारा से एकदम नया हो जाएगा आपका फीड, और आप फिर अगेन आप जिन चीजों को लाइक करने लग जाओगे आपकी फीड वैसी हो जाएगी. तो ये कब आया? जब बहुत ज्यादा इसके खिलाफ विरोध हुआ था अमेरिका में कि बच्चे जो हैं एडिक्टेड होते जा रहे हैं. आप लोग के अंदर समझ है, आप लोग के पास एक सोशल पर्सोना है कि आप अपना फोन कभी किसी को दिखा भी रहे हैं तो कोई गलत कंटेंट अगर आपके सामने आ गया तो एक काइंड ऑफ बच्चों, मतलब आपको ऐसा लगने लगेगा ना, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन सी हो जाएगी आपके लिए. लेकिन बच्चों के साथ ये नहीं हो रहा था. बच्चों को तो वो सोशल पर्सोना भी नहीं है ना कि दोस्त हंसी बनाएंगे, वो दोस्त के पास फोन लेके जा ही नहीं रहे थे, वो तो मम्मी पापा के फोन में देख रहे थे. मम्मी पापा बहुत केसेस में नहीं इतने जानकार होते हैं व्हाट इज इंस्टाग्राम, व्हाट इज फीड एंड ऑल दिस थिंग. फॉर दिस रीजन अमेरिका में इस चीज का विरोध हुआ. एंड आफ्टर दैट व्हाट, ये कंटेंट प्रेफरेंसेस चेंज करने वाला ऑप्शन तब आया है इंस्टाग्राम पे कि नाउ यू कैन चेंज योर कंटेंट प्रेफरेंसेस. अभी जब आपका ब्रेकअप हुआ था तो आप नुसरत जी की और ब्रेकअप वाली रील्स देख रहे थे, अरिजीत सिंह सुन रहे थे रील्स पे. अब मान लेते हैं कि आप मूव ऑन कर गए, मूव ऑन भी नहीं किए तो सोच लिया कि ठीक है छोड़ो यार, जो गया सो गया. अब आपको फनी कंटेंट देखना था तो अब आप जाके प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं अपनी. ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल आप बैठ के रोते ही रहेंगे, नसें काटने लग जाएंगे अपनी. ठीक है, तो अब ये हो सकता है. सो काइंड ऑफ दिस इज व्हाट सोशल मीडिया. अब इसी प्रकार का जो है ना आरसी ऐसी ही आती हैं आपके में. ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही वैसी आ जाएंगी एकदम किताब से उठा के कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा. ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पे आती हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज that what was the question कहाँ गया? अच्छा ही रहा. What is the central idea of the passage? What do you think? Social media cause insecurity? नहीं, insecurity पहले से है. Social media exploit existing vulnerabilities, right? Anxiety is increasing globally, हाँ बढ़ रही है. Algorithms are dangerous, हाँ definitely. मुझे तो ये तीनों ही करेक्ट लग रहे हैं. But context reference अगर हमारा पैसेज है तो इन कॉन्टेक्स्ट विद द रेफरेंस पैसेज कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट लग रहा है? सी. वाई? सोशल मीडिया एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है. ठीक है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं, बट ज्यादा सही सी है. टोन आपको कैसी लगी इसकी? क्रिटिकल, आलोचनात्मक थी, क्रिटिसिज्म कर रही थी. किसका क्रिटिसिज्म कर रही थी? सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया हमारी वल्नरेबिलिटीज को आके और ज्यादा पोक कर रहे हैं. ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर. Which of the following is an assumption underlying the passage? Users are unaware of all algorithms. Vulnerabilities already exist in individuals. Social media companies are non-profit. भाई ये तो प्रॉफिट तो होगा ही, तभी तो वो थ्राइव कर रही हैं. Anxiety cannot be measured. It can be measured. Psychological tests it can be measured. ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये काफी हद तक करेक्ट है.
सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ये बात बता सकता है कि हमारा एल्गोरिदम सेट है और उसी एल्गोरिदम पे पूरा इंस्टाग्राम चल रहा है, पर जो अनअवेयर है वो बता ही नहीं सकता कि एल्गोरिदम नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। बट उस केस में इफ द रेफरेंस इज द पैसेज तो कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। वल्नरेबिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल्स। कमिंग टू द सेकंड, ऑथर का प्राइमरी फोकस बच्चों किस पर है? कि citizens are well informed? No, citizens are not well informed. They are uninformed. Democracy is failing? No, democracy फिर भी thrive कर रही है. Ignorance is increasing? हाँ, ignorance बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया ना कि ignorance लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ignorance है, बट ये नहीं बोला कि वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हुआ। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? इंस्टीट्यूशंस प्ले अ स्टेबलाइजिंग रोल। कमिंग टू द फिफ्थ, कौन सा वाला वीक करेगा? अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें सी वाला करेगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स होता हुआ दिखा रहा है। ओके, टोन पर आ जाइए, पता ही होगा कौन सा ये टोन, सरकास्टिक है इसकी टोन। प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एडिटर एडिटोरियल इज टू, ये किया था क्या हमने? हाँ किया था। क्या है इसका मेन मकसद? एंटरटेन रीडर। बॉलीवुड तो है नहीं कि एंटरटेनमेंट करवाएगा। प्रेजेंट फैक्चुअल डेटा ओनली, सिर्फ फैक्ट्स होते तो फिर तो रिपोर्ट्स होती हैं, अलग अलग निकलती हैं। डिस्क्राइब इवेंट्स विदाउट ओपिनियन, फायदा क्या फिर ऐसे मूवीज देखने का भी जिसमें कोई ओपिनियंस ही ना हो। परसुएड रीडर्स टुवर्ड्स अ व्यू पॉइंट, एब्सोल्युटली, किसी एक दिशा में ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं द काइंड ऑफ एडिटर्स यू आर चूजिंग, आपका ब्रेन भी उसी तरीके से वायर हो जाएगा। जिस प्रकार के एडिटर्स को आप पढ़ोगे, जिस प्रकार के न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ोगे, आपका भी ब्रेन उसी तरीके से काम करने लगेगा। काइंड ऑफ, इफ आई से majority of, see, I am not being opinionated here, but majority of South Indians believe in this newspaper known as The Hindu, and The Hindu is absolutely critical newspaper. It is not a newspaper जो right wing या left wing में जाता है। जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर्स रहते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने में रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू हिंदू इट इज एंटी गवर्नमेंट काइंड ऑफ। तो कोई भी हो, राइट विंग लीडर हो सेंटर में, लेफ्ट विंग लीडर हो सेंटर में, द हिंदू हमेशा एंटी गवर्नमेंट ही रहता है, क्रिटिसिज्म निकालता है। अब आप अगर बहुत ज्यादा द हिंदू पढ़ने लग जाओगे तो आपका दिमाग सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करेगा, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं आती। इसीलिए जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ये बोला जाता है कि द हिंदू के संग बैलेंस करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस, ये टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ना चाहिए, वरना आप बहुत ज्यादा हाईली क्रिटिकल हो जाओगे गवर्नमेंट के और वो फिर आपका नेगेटिव वाला दिखने लग जाएगा। तो वो जो आपको एक थोड़ा आंध्रा, तमिलनाडु, केरला में आप जब बच्चों से बात करोगे तो दे वॉन्ट बी राइट विंग पर्सन और अ लेफ्ट विंग पर्सन। समझ सुनो, राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या होते हैं, वो जब पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। दे वुड बी एंटी गवर्नमेंट। स्टेट में आपके केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी, बुराई करेंगे, भाजपा की सरकार होगी, बुराई करेंगे, सपा की सरकार होगी, वो होगी नहीं बिकॉज वो स्टेट पार्टी है, बट अगर मान लो हो गई तो भी बुराई करेंगे। कम्युनिस्ट की सरकार आ गई तो भी बुराई करेंगे, बिकॉज वो कहां से पढ़ रहे हैं अपना स्टफ? द हिंदू से। और द हिंदू के एडिटोरियल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एंटी गवर्नमेंट होते हैं, एंटी इंडियन नहीं होंगे, दे आर हाईली इंडियन नोशंस बट एंटी गवर्नमेंट होते हैं। बट आप कंप्लीटली वही चीजें नहीं पढ़ सकते हैं, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ती है। इसीलिए मैं सबको यही बोलती हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करो, वहां प्रोज एंड कॉन्स साइड बाय साइड गिनाए जा रहे होते हैं, इसीलिए। ठीक है, सो द प्राइमरी पर्पस इज टू परसुएड रीडर्स टुवर्ड्स अ व्यू पॉइंट। इज दैट क्लियर? इतना आज की क्लास का सबको समझ में आ गया? ठीक है, काफी बहुत ज्यादा आपके जो कैट में है वो ऐसा नहीं है, बहुत इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, बट व्हेन आई विल कम टू ग्रामर थोड़ा बहुत आप लोग अम्यूज रहोगे उन चीजों से, क्योंकि आपको काफी चीजें सॉल्व करनी होंगी यहाँ बैठकर। बट ये जो एलआर और ये वाला कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, ये थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा बोरिंग काइंड ऑफ तो जाएगा ही। तो मे बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट इफ यू आर कमिंग टू द क्लास, कि थोड़ा सा ज्ञान व्यान की बातें यहाँ ज्यादा होंगी कंपेयर टू कुछ ऐसा जो हम खुद सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए। अच्छा, किसी को कोई क्वेरी है आज के क्लास में तो प्लीज एक बार मुझसे पूछ लीजिए।